Good morning, madam. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, madam. Good morning. Sir. Let us start, madam. Okay. Today we are going to do this module on understanding and managing adolescent issues. You all are residential teachers in the JNV, right? You stay 24/7 with the children. Yes, madam. Okay. So it's very important to understand the adolescents that you are handling every day, day in, day out, so that you can be more empathetic and you can understand them better, so that you can manage their issues also. When you understand them properly, then only you can manage the issues more swiftly. So, as per the age, there are few things which are age appropriate behavior, we call it. So, just because they belong to that age category, they are behaving that way. So, we'll try to understand them in a better way and provide solutions when there is any issue regarding these adolescents. Okay. And when we talk about development of adolescence, because this is a very important developmental stage of their life. They go through different hormonal changes, different things are happening in their life. They are experiencing new things in life. And in addition to that, they are handling the pressure of studies and staying away from home. You must have seen, is the space okay for everybody? So, in that context, we'll focus on development during adolescence and issues and problems in adolescence, then managing the challenges that we face during this adolescence phase. So, when you're trying to understand the adolescence, what comes to your mind? If we reflect on our adolescent stage, we don't see that it was such a issue, isn't it? But here, when so we'll focus on the development phase during adolescence. So you have to facilitate the physical and cognitive development of these adolescents because they are staying with the school 24/7. After the school hours, you become the parent of the adolescent because you are the house parents and they come to you for any difficulty that they are facing in their life. So you cannot carry the school issues to the dormitory again because that is their house kind of situation that they expect you to behave very impartially with them. When they have any issue also, they will try to sort it out among themselves because they think they are grown up. But you have to intervene as a caretaker of the situation and as a teacher that you are involved with the program. So in such a situation, what is the objective that we have in mind
that since this is a developmental phase, they should develop properly. So we are highlighting on the physical development of the adolescents. So we have to see how we can facilitate physical development in adolescents, then how we can promote the physical development through the different school programs, like taking care of their nutrition, the play time that they are spending in, then how they are studying, how they are spending their time, their groups, how they are utilizing or misutilizing their time. So, how to facilitate the physical development? This is the only observable change that we will see in this group. Suddenly they will grow tall, suddenly they will gain weight, and mustache will come, or girls will achieve the developmental spurts very quickly. They'll get their periods. All these problems that they are going through will be observed at this age only, because the hormonal changes are happening, different hormones produced by them, they speed up the growth rate and stimulate the characteristics, secondary sexual characteristics in adolescence also. There is a hormone called gonadotropic releasing hormone, which the hypothalamus is producing, and it is controlling the development during puberty. Okay. And there is one more hormone, which is follicle stimulating hormone, which is responsible for producing further other hormones which cause bodily changes during adolescence. These hormones, um, sorry, is there any question? So these hormones act on the ovaries and the testes of the boys and ovaries of the girls, and stimulate the release of hormones like estrogen and progesterone, which brings changes in them. That is how we see the secondary sexual characteristics developing in these adolescents. So they would feel shy. The boys will feel shy. They will try to get rid of the mustache, which is not to their liking. किसी किसी का पतला मुंह निकलता है तो उनको शर्म आती है, and some will like the look on them, and they will spend hours together settling their mustache. They will be standing in front of the mirror all the time, and they will take time to get ready. Okay, so these are the changes that we'll see in these adolescents. And the development of brain in adolescence also happens towards late adolescence. Brain continues to develop for a longer period of time. It doesn't stop at any stage, because we never stop learning. So brain development is always important, and at this point, since they are handling so much studies and so many formulas, and they have to remember, uh, so their brain is functioning 24/7 all the time, even if they're sleeping, because sleep also they plan out their mentally, they plan out their next day, which they are not concentrating on studies only, but other plans they have with their friends. So there will be a friction again when they are staying in the same compound. In the school, they have to spend their relaxation time also. So they may be physically mature, but they have to learn certain emotional and social skills, which they have to follow by leading a very regulated life. And leading a regulated life in hostel is very difficult to teach the adolescents, because sometimes they will be influenced by their friends. Even if you must have seen all good students will be behaving properly, suddenly they will do some mischief, because they would say, उसने कहा मुझे ऐसे करने के लिए तो मैंने कर लिया, मैं रोज रोज थोड़ी ना करता हूँ. So you will find that there is a pressure, peer pressure we call it. So because of the peer pressure, they will be doing some mischief, but the development at the brain level, the cognitive development is normally happening, or the developments are happening normally, but they are just
experimenting with the social situations or with the emotional issues they're handling is something new to them. So they are trying their level best to do it well as per their capacity. So in the amygdala there is a center in the brain called amygdala, which is the center for emotions, we say. That also happens, we call it amygdala hijack. So this sensation is when you have a sensory signal coming into your brain and which travels through the amygdala. It takes a final track to the thalamus and it fights with the situation where you have to face the situation or you have to flee the situation. So this is a fight or flight symptom the amygdala will show. So the body has a fear response, and this is seen in adolescents when they are confronted with some fearful situation. Either they have two options: either they will fight it or they will fight it or flight it. They will run away or they will face it head on. And there are some experiments that are done on amygdala of animals. When this amygdala was removed, they were displaying no fear at all. So amygdala is the center for emotion, and fear is also a kind of emotion which these adolescents go through. So at this time, during adolescence, the amygdala doesn't respond to fear so much because they think they are very brave, they can handle any situation, they don't need any help. This kind of feeling will come to this adolescent group. And then eating well and exercising well, having a proper diet, sleeping well, and doing the right kind of physical activity is very important. These are the three mantras we say, which refers to eating well, sleeping well, and exercising well. It highlights the importance of healthy eating habits, how to have proper nutrition, how to have physical activities incorporated into the daily activities of the child, and the adequate rest and sleep also is a part of that program. So sometimes they do all the mischief by staying awake late at night. So these things have to be taken care of. Am I clear? Any? If Yes, there, madam. okay, Yes, madam. okay, Yes, ma'am. okay. Please, ma'am, bilingual. Sorry. Please explain bilingual, madam. You want me to speak in Hindi also? Yes, 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 ma'am. ओके, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। Yes, yes, ma'am. अभी तक जितना बताया उतना समझ में आ गया। Yes, 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 ma'am. ओके ओके। ये जो एडोलेसेंट ग्रुप है, हाउ ट्रिकी दैट सिचुएशन दे आर इन, एंड उनको क्या क्या करना चाहिए वो सब हम बात कर रहे हैं। उसके लिए ये 3 मंत्रस हम बोले: ईटिंग वेल, स्लीपिंग वेल एंड एक्सरसाइजिंग वेल। वो क्या करता है, उनके डाइट पे, स्लीप पे और एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम पे एम्फसाइज करते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो व्हाट काइंड ऑफ फूड दे शुड बी हैविंग? वो तो हॉस्टल में रह के हर तरह का फूड उनको मिलता है, पर उनकी जो चॉइस होती है, बीच बीच में आपने देखा होगा हॉस्टल से भाग के चले गए, ढाबे पे खाने के लिए चले गए थे, वो खाने पे बुलाया, वो इसीलिए चले गए थे। ऐसी बदमाशी करते रहते हैं, है ना? करते हैं। हाँ, मैडम, नवोदय में बहुत सारा ऐसा केसेस होता है। हाँ, क्योंकि खाना एक मेजर पोर्शन है उनके एक्टिविटी का, और इसी टाइम पे उनको बहुत भूख भी लगती है, सिंस दिस इज अ ग्रोइंग पीरियड। डेवलपमेंट, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, इतना एनर्जी भी उनका जा रहा है पढ़ाई में, भाग दौड़ करने में, तो उनको खाने की भी ज़रूरत होती है ज़्यादा। इसीलिए ये खाने के लिए ढाबे पे जा चलो, किसी को बोलना नहीं, ये सब वो उनका चलता रहता है। Yes, ma'am. Yes. सो लिस्ट एक आप देखोगे तो कितना न्यूट्रिशियस फूड वो खाते हैं और कितना उनको खाना चाहिए। ये नहीं कि मतलब जो उनको मुंह को अच्छा लगे वही खा रहे हैं। सो फूड डिफरेंसेस भी होता है। अगर बच्चा कोई किसी एरिया से आया है,
उधर का फूड हैबिट्स डिफरेंट है, तो दे विल हैव इश्यूज इन एडजस्टिंग टू द सिचुएशन. यस मैम. जैसे साउथ इंडिया में डोसा हो गया, तो यहाँ पे आके अगर वो उसको वो नहीं मिला साउथ इंडियन खाना, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे चपाती खा के. तो these are the different conditions they go through. And healthy eating के लिए आपको क्या उनकी, since we are ensuring their healthy development, physical development also, क्योंकि आपके निगरानी में रह के ही ये लोग बड़े होते हैं. ये बच्चे इतने से होके आते हैं, लंबाई में, ऊंचाई में, कद में, सब में उनकी डेवलपमेंट देखने को मिलता है. तो यू टीचर्स आर वेरी रेस्पॉन्सिबल, वेरी मच रेस्पॉन्सिबल फॉर their proper development. So you have to ensure that they are taking a balanced food. Balanced food क्या होता है? जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर हो. तो ये तो फूड उनको दिया जाता है, लेकिन खाते कि नहीं ये एंश्योर करना है. फ्रेश फ्रूट्स खाना चाहिए, होममेड फूड खाना चाहिए, पैकेज्ड फूड नहीं खाना चाहिए, प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड, और पानी रेगुलर पीना चाहिए, हेल्दी स्नैकिंग हैबिट्स होना चाहिए. जैसे बीच में भूख लगे तो अगड़म बगड़म नहीं खा के हेल्दी खाना जो मिलता है, स्प्राउट्स हो गया, ये सब मिलता है ना आपके स्कूल में बच्चों को. हाँ मैडम, मिलता है. तो ये सब खाते हैं उनके न्यूट्रिशंस को ध्यान में रख करके ही मेनू सेट किया जाता है मैडम. जी. लेकिन ये बच्चे खाते हैं कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा. जैसे हाँ, वो मेन मैटर करता है. हाँ, इन्हें तो टक साहब में आजकल जो है लेस कुरकुरे ये सब चाहिए. हाँ. वो तो घर पे हमारे बच्चे भी नहीं सुनते हैं, तो इतने सारे बच्चों को आप लोग जो संभाल रहे हैं, ये थोड़ा मुश्किल काम है. आप लोग सोचते होंगे हमको तो. यस, बोलिए, कोई क्वेश्चन है? कुछ कोई बोलना चाहते हैं? जैसे हमारे घर पे आप लोग टीचर होके एट द सेम टाइम यू ऑल आर पेरेंट्स ऑल्सो. आप लोगों को भी अपने बच्चे हैं, है ना? यस मैम. अपने बच्चे कितना बात मान लेते हैं दोस्तों. बहुत दिक्कत होता है मैम. तो समझिए कि आपके इतने सारे जो बच्चे स्कूल में हैं, उनको संभालने में कितना दिक्कत होता होगा. फिर भी ये कोर्स का नाम क्यों रखा है, अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, अंडरस्टैंडिंग टीचर्स क्यों नहीं रखा? आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा. हम तो इतना मुश्किल से गुजरते हैं और हमको समझना चाहिए. ये समझने की बात हम बोल रहे हैं क्योंकि इनको जितने अच्छे से आप समझ पाओगे, क्योंकि इनकी समझ तो होगी नहीं, क्योंकि दे आर स्टिल ग्रोइंग. आप लोग पहले से ग्रोन अप एडल्ट्स हो, ये तो अभी डेवलप कर रहे हैं. तो उनकी डेवलपमेंट अगर आपके समझ में आ जाए, और वो चाहते क्या है, बोलते कुछ है, चाहते कुछ है, क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, ये सब समझने में आप जितना अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, आपके खुद के चैलेंजेस और इश्यूज कम हो जाएंगे. इतना आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा बच्चे के इश्यूज डील करते करते, इतना गुस्सा नहीं आएगा, इतना मतलब हेल्पलेस नहीं फील करेंगे. कभी कभी बहुत झगड़ा होता है, तो आपको एक तो लास्ट ईयर आई वाज टेकिंग अ क्लास, जो मैंने सुना कि किसी के मोटरसाइकिल में बच्चों ने आग लगा दी. ऐसे कभी बात हुआ है? कभी आपके नजर में आया है? जी मैम, आया है जी. बदमाशी तो बच्चे करते हैं, तो बदमाशी को कैसे हम हैंडल करते हैं, दैट विल सेट एन एग्जाम्पल एक्चुअली हाउ टू गो अबाउट इट इन फ्यूचर सिचुएशंस. ये तो उनके लिए एक ही सिचुएशन है जो फ्यूचर में रिपीट भी हो सकता है, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि इसको कैसे, किस तरीके से हैंडल करें ताकि फ्यूचर में ये बच्चा अच्छा होके ऐसे सिचुएशन पैदा ही ना करे. सो वो शुरू होता है इनका टेकिंग केयर ऑफ दिस एडोलेसेंस जो हम बात करते हैं. इट स्टार्ट्स विद द फिजिकल डेवलपमेंट, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट वी टॉक अबाउट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में खाना सही तरह से बैलेंस्ड फूड होना चाहिए, पानी अच्छे से पीना चाहिए, स्नैकिंग जैसे उनको दिया जाता है वो खाना चाहिए, स्पाइसी ऑयली और ये सब फूड उनको ज़्यादा नहीं खाने का
चाहिए। सो एंड नो टेलीविजन और मोबाइल, कंप्यूटर भी नहीं यूज़ करना है जब खा रहे हैं ये लोग। स्लोली वो चबा चबा के खाना चाहिए। सो बच्चों को बताते हैं आप लोग ही। सो माइंडफुलनेस एक है। आप लोग तो बोलते हो, कितना सुनते हैं ये बच्चे। एक रूल कर दें, जैसे फोन यहाँ पे रख, फोन अलाउड है आपके इसमें स्कूल में? नो नहीं मैडम, मैडम, नहीं, लेकिन नो फोन मैडम, कभी कभी anything strictly prohibited mobile phone. अच्छा, लेकिन रखते तो है, माँ बाप ने दिया है करके कभी कभी। और हाँ, चोरी से मतलब वो हाँ, छिपा के। हाँ, किसने दिया? तो मम्मी ने दिया, पापा ने दिया बोलते हैं, है ना? क्योंकि ये चोरी से जो रखते हैं, जो उनको छुपाने की जरूरत पड़ जाए, वो गलत काम है। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो कि वो आके खुद ही बता दे, आपसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये सब जानने के लिए हम लोग ये मॉड्यूल करेंगे। माइंडफुलनेस एक है, व्हेन यू आर फुल्ली माइंडफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग एट द प्रेजेंट मोमेंट। तो ये ईटिंग का हैबिट माइंडफुलनेस होना चाहिए। जब वो लोग खाते हैं तो दिमाग और मन सब वो खाने पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे उनको खुराक जो मिलता है उससे अच्छा सा वो वैल्यू मिल सके फूड का, जो फूड वो खा रहे हैं। दे शुड एंजॉय द फूड एंड दे शुड नॉट ओवर इट ऑल्सो। वो फोन देखते देखते, टीवी देखते देखते, खेल खेल में खा लिए तो कम खाए या ज़्यादा खाए उसका हिसाब नहीं रखते हैं। इसीलिए they have to pause, they have to take a break and attend to the moment when they are having food, है ना? सो माइंडफुल ईटिंग के लिए ओके मैम। आपने आपने कभी देखा है कि माइंडफुल आप अगर मन लगा के खाना खा रहे हो तो खाना ज्यादा टेस्टी लगता है? बात करते करते खा लिए तो क्या खाया पता नहीं चलता है, बस खाना खत्म हो गया लगता है। यस, यस मैम, यस। बैठ के उसका आनंद लेके खाओ अच्छे से, तो कितना अच्छा वो सुकून भी देता है फूड। और ज़्यादा नहीं खाओ तो भी पेट भरा हुआ लगता है। और बात करते करते फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ आप खा रहे हो तो फिर बाद में पता नहीं चलता, कोई बोले अरे पनीर बहुत अच्छा बना था, अच्छा मैंने तो खाया नहीं, खाया था क्या, याद भी नहीं आएगा, है ना? सो माइंडफुल ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकलकेट एज अ हैबिट यस मैम। among these adolescents। ठीक है। और इस जो ये आपका बुक है उसमें कुछ एक्टिविटीज है, आपको जब टाइम मिले ना आप वो कर लेना, ताकि आपको आसान लगे जब एग्जाम कुछ होगा आपका, तो ये सब आपको याद रह जाएगा। पढ़ाई करते करते आप लिखोगे भी तो। जैसे ओके मैम, ओके मैम। इमोशनल एबिलिटीज, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, सोशल एबिलिटीज, ये सब क्या है आप याद कर करके लिख सकते हैं। फिर आता है स्लीपिंग वेल। ये तो सबको पता है, नींद नहीं आए तो कितना चिड़चिड़ा लगता है अगले दिन। सो स्लीपिंग इज इम्पॉर्टेंट। ये जो एडोलेसेंट का हार्मोन रश होता है तो उनको लगता है कि हम रात भर बात करके बदमाशी करके सुबह फिर क्लास के लिए चले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उनकी जो अटेंशन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो पता नहीं चलता है उनको कि स्लीपिंग एक्टिविटी कितना इम्पोर्टेंट है। सो एडिक्वेटली उनको अच्छे से जितना सोना चाहिए उतना उनको सोना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट ओनली रेस्टिंग, रादर ये रिपेयरिंग टाइम भी होता है बॉडी का। बॉडी का जितना भी वेयर एंड टेयर होता है वो सोने के बाद वो बॉडी का अपना मोड एक होता है, रिपेयर मोड में चला जाता है, मेंटेन करता है, फिर अगले दिन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है। और कौन से टाइम पे सो रहे हैं वो भी ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है। So our body is actually maintained because of the sleep that we are inculcating into our daily routine। 24 hours में 8 घंटा सोना भी ज़रूरी होता है। बच्चों को तो सोना ही चाहिए, क्योंकि अगले दिन फिर से उनको भाग दौड़ करना होता है, पढ़ाई करना होता है, जिसमें उनको मेंटली कंसंट्रेट करना होता है। तो
स्लीप का बहुत सारा फंक्शन होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ावा देता है, मतलब अच्छे से फंक्शन करता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस इसका भी है, जो ये सही तरीके से फंक्शन करेगा अगर बच्चा अच्छे से रेस्ट, एक गुड नाइट स्लीप उसको मिले तो। इसीलिए वी हैव टू एंश्योर दैट दे आर स्लीपिंग प्रॉपरली। एक आइडियल टाइम होता है 8 घंटे से 10 घंटे तक का रेस्ट बच्चों के लिए। अब ये कम सोते हैं क्योंकि स्टडी प्रेशर होता है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मोबाइल लैपटॉप ये सब देखते रहते हैं, मूवी देखते हैं कभी तो, नहीं तो बात बात करते करते उनको टाइम निकल जाता है, मैगजीन पढ़ते हैं, कुछ करते हैं पढ़ाई के सिवा। तो ये 8 घंटा का मिनिमम स्लीपिंग आवर जो है आपको इंश्योर करना है जो उनको मिल रहा है। और ये स्लीपिंग टाइम उनका रात को ही होना चाहिए। 10 to 6 हो गया है, सो 8 घंटा उनका हो गया, क्योंकि ये सनसेट के बाद उठते हैं जो, उनका इतना अलर्ट नहीं रहता है माइंड। सुबह सुबह जल्दी से उठ जाए तो उनका फ्रेश, उनको खुद को लगता है कि फ्रेश होके उठे हैं। ये सर्काडियन रिदम बोलते हैं इसको, जो हमारा इंटरनल क्लॉक जो है बॉडी का, वो हमारा नेचर के क्लॉक से रिदमिक है। जो टाइम अंधेरा हो जाता है उसी टाइम पे हमको थोड़ा रिलैक्स करने का शुरू करना चाहिए। ये सब सर्काडियन रिदम में आता है। So how to ensure a good night's sleep? You must have seen, you yourself must be sleeping at a particular time, and you must be, as teachers, you must be ensuring that you are getting enough sleep also. ये बच्चों को स्लीप की जरूरत नहीं है, टीचर्स को भी उतना ही जरूरत है जितना बच्चों के लिए चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट डे अगेन यू विल बी आफ्टर द स्टूडेंट्स to follow a particular routine, to teach them to do all the activities that a teacher is expected to do. You have more responsibilities, so it is very important for you also as a teacher to get enough sleep at the night time. So uske liye you must go to sleep and wake up at regular times. अच्छे से एक्सरसाइज मॉर्निंग में करो तो फिर नींद भी अच्छे से आती है। सनलाइट अच्छे से आपको रिन्यू होने के लिए एनर्जी देता है। यू शुड फॉलो अ स्लीप रूटीन फॉर द चिल्ड्रन। जैसे हमारे पेरेंट्स कैसे हमको सुला देते थे, टाइम हो गया लाइट्स ऑफ, अभी सो जाओ, तो सो जाते थे। यहाँ पे भी स्कूल में जबकि ये हॉस्टल में रहते हैं, फिर भी उनको भी वही रूटीन फॉलो करना है। स्क्रीन टाइम आपका तो बच्चों को तो दिया नहीं जाता है मोबाइल, पर जब ये भी आपको नज़र में रखना है कि किसके पास मोबाइल छुपा के रखा है, क्योंकि ये सब इक्का दुक्का बदमाशी का वो भी आपने देखा होगा करते हैं। तो एक का मोबाइल है तो और 5 जने भी उसमें लग जाते हैं फिर देखने के लिए, कॉल करने के लिए घर पे या फ्रेंड को। एंड बेड पे जो जाते हैं वो सोने के लिए ही यूज होना चाहिए। बेड इज ओनली फॉर स्लीप। एंड अगर बेड पे बैठ के बाकी सब काम करे, पढ़ाई करे, बदमाशी करे, गप्पे मारे, तो बेड पे बैठो तो बेड विल नॉट गिव द सिग्नल टू स्लीप, तो प्रॉब्लम होता है। सो यू हैव टू यूज द बेड ओनली फॉर स्लीपिंग पर्पस। स्लीप अगर उनका सही तरीके से हो तो दे विल बी अलर्ट इन द क्लासरूम्स। देन एक्सरसाइजिंग भी अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन देयर फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में खाना, सोना और एक्सरसाइज, ये तीनों बात बहुत ज़रूरी है। तो इन एडिशन टू अ बैलेंस्ड डाइट, अच्छे से सोना। उसको पेपर वाला बोलना इस महीने का भी बिल देना है, बोलो। सॉरी, रिपीट कीजिए। सुमन जी, आपका माइक म्यूट रखिए। इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। Okay.
So in addition to that, a balanced diet is very important. अच्छे से ये सोते हैं कि नहीं, खाते हैं कि नहीं, ये सब आपको देखने की ज़रूरत है. देन ये तो बच्चे खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, तो यू हैव टू एंश्योर दैट दे आर एक्सरसाइजिंग डेली एज अ रूटीन एक्टिविटी. बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स में कभी कभी ये होता है कि जो लोग खेलने का पसंद नहीं करते हैं वो छुप के कहीं पे बैठ जाते हैं, मॉर्निंग असेंबली में हो या प्रेयर टाइप पे हो. आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव इतने नहीं बनते हैं, ताकि उनको खींच के लाए आप फ्रंट पे, उनको एनकरेज करें. ये सब करने से देयर डेली रूटीन ऑल्सो विल बी अ स्मूथ वन. उनको भी एक्सरसाइज होगा, वो इन्वॉल्व फील करेंगे. कोई इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको मन है कि बाकी जाके जैसे सब मॉर्निंग असेंबली में करते हैं वो भी करें, लेकिन उनको कोई खींच के लेके जाना पड़ता है तभी जाके वो पार्टिसिपेट करते हैं. ऐसे भी शर्म करके कोई नहीं जाते हैं शाय नेचर की वजह से. सो यू हैव टू बिल्ड अ स्कूल कल्चर फॉर प्रमोटिंग फिजिकल फिटनेस, जिसमें वो लोग भी एनकरेज फील करेंगे to participate in all the activities that the teacher tells them. For their own health and well-being, they have to get involved in the physical activities class. Yoga can be included in the daily activities. NCERT का जो योगा होता है as a part of the course curriculum, you can also encourage the children to participate in that. You can मेक इट अ फन एक्टिविटी. योगा करते करते ये तो उनका अगर फन एक्टिविटी हो जाए तो वो कभी मिस नहीं करेंगे, खुद बुला के लाएंगे, सर अभी तो हमारा योगा क्लास हो गया, चलिए करते हैं करके. देन कम्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट के बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव मतलब द हायर मेंटल फंक्शनिंग इन चाइल्ड. क्योंकि ये उनका डेवलपमेंट पीरियड हाई होता है, ग्रोथ स्पॉट उनका बहुत ही सडन होता है. सो देयर आर थियोरीज वी विल डेवलप, जो हम समझने की कोशिश करते हैं. व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, वी रेफर टू द कनेक्टेड थियोरीज दैट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली. So for explaining cognitive development, we have Piaget's theory. Piaget's theory, उनका theory है कि there is a process of assimilation and accommodation. Assimilate all the information that is available to them, then accommodate that into their immediate environment, then which influences the formation of mental pictures. जैसे अगर कोई टीचर को देखे तो कैसे समझ में आ जाता है कि वो टीचर है, क्योंकि हमारा स्कीमा एक फिट होता है बचपन में. टीचर्स ऐसे होते हैं, चश्मा पहनते हैं, बैग लेते हैं, कुछ पेन उनका होता है पास, कुछ किताबें होते हैं, तो वो लेके आए. तो कोई टीचर नया भी ज्वाइन करे तो उनको पता चल जाता है कि ये टीचर है हमारे, क्योंकि उनका ये जो दिमाग में ये स्कीमा, जो टीचर का स्कीमा है, ये शॉर्टकट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्सनैलिटी, वो स्कीमा बोलते हैं, थंब रूल जो होता है वो उनको फिट करता है. तो वो पहले कहाँ पे देखे हैं ऐसे टीचर को, फिर उसको एकोमोडेट करते हैं, देन दे से दैट अ न्यू टीचर हैज जॉइंड मे बी. Assimilation refers to the receiving of information from the environment, and accommodation is modifying your environmental existing system to include all the new inputs that you are gathering from the environment. जितना आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है आपके एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, उसको मिला के आपका अंडरस्टैंडिंग और मजबूत बनता है. ठीक है. सो Piaget has proposed 4 stages in the cognitive development, and adolescents have the formal operational stage, pre-operational, operational, post-operational, ऐसे stages के बारे में बात किए हैं Piaget. जॉन पियाजे उनका नाम था. तो वो जो फुल डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बच्चों का ये बात करते हैं एक पर्टिकुलर स्टेज का, जिसमें
उनका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और हाइपोथेटिकल थिंकिंग शुरू होता है, जो एडल्ट स्टाइल ऑफ थिंकिंग के करीब करीब होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मतलब उनको एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पे काम करने को मिलता है। अगर मैं ऐसा करूं, आवाज नहीं आ रही मैडम। सॉरी, दोबारा बोलिए, सुनाई नहीं दिया। आ रही है मैडम, आवाज आ रही नहीं आ है रही? ऑडिबल। सर क्लियरली ऑडिबल है, वहाँ पर डिस्टर्बेंस है। आ रही ओके ओके। सिंस ये बच्चे जो है ना, दे हैवंट रीच द फुल डेवलपमेंट स्टेज ऑफ देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज, इसीलिए उनका थिंकिंग कैसे रिफाइन होता है हमको मालूम पड़ेगा जब वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को पकड़ ले और हाइपोथेटिकल थिंकिंग करे। हाइपोथेटिकल थिंकिंग मतलब ये सिचुएशन हुआ नहीं है उनके लाइफ में, लेकिन उनको हाइपोथेटिकली सोचने के लिए बोलो तो वो सोच के उसका सॉल्यूशन भी निकाल देते हैं। मान लो ऐसा है, जो बोलते हैं ना हाइपोथेटिकल थिंकिंग, उसमें काम आता है उनको। ये सब शुरू होता है डेवलपमेंट इन सब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और हाइपोथेटिकल थिंकिंग, उनका एडल्ट स्टाइल ऑफ थिंकिंग हो जाता है। फिर ईगोसेंट्रिक थिंकिंग एक है जो बड़ा मुश्किल होता है एडोलेसेंट्स का पास देखा जाए तो, बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस देम टू टेक रिस्क टेकिंग बिहेवियर, लाइक ड्रग्स ले लेते हैं या बदमाशी करते हैं। दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स, जोर से गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल लेके किसी का भागे, घुमा के आगे, बिकॉज दे थिंक नथिंग कैन हैपन टू मी। उनको लगता है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं अभी यहाँ से चोरी चोरी ये मोटरसाइकिल लेके जाता हूँ, देखना कितने जोर से चला के फिर वापस आ जाऊंगा 2 मिनट में। So these are all risk-taking behavior that is observed among these adolescents. Egocentrism also is seen among adolescents as a behavior where they have the willingness to be observed by others. बाकी सब उनको देखें, बाकी सब उनको सराहे, इसीलिए ये लोग ऐसे काम भी करते हैं। जैसे एक बच्ची है, this example is in your book also. There is a girl who is in class 9. अगर उसको आप बोलो तो पढ़ाई करने के लिए, उसको लगता है कि नहीं मैं अपने टाइम पे पढ़ाई कर लूँगी, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बड़ी हो गई हूँ अभी, मुझे क्यों बोलते हैं, आई नो हाउ टू मैनेज माई स्टडी टाइम। सो शी वॉन्ट्स टू बी ट्रीटेड एज एन अडल्ट, जबकि वो बच्चे हैं। ये टाइम इतना क्रूशियल होता है कि दे वॉन्ट टू बी अ किड, at the same time they want to be treated as a grown up adult also, because they are in their mind also they are confused. It is a typical example for adolescents to think like that, and they always think they are thinking correctly. Then there is this theory of cognitive development given by Vygotsky. Vygotsky का जो है ये है सोशियो कल्चरल। एक्सक्यूज मैम, मैम अगर इस टाइम क्लास व्यक्ति का है तो वो क्लास में रहे या फिर ये क्लास अटेंड करे, मतलब ट्रेनिंग, वो अगर बोलने से भी वो बोले कि आप क्लास लीजिए। समझे नहीं मैम मेरा स्कूल में अभी क्लास है मेरा, और ट्रेनिंग भी अभी हो रही है, तो मैं क्या करूं? अच्छा, आप तो एडल्ट हो, आप प्रायोरिटी के हिसाब से आप डिसाइड है ना। जी हम तो ये एडोलेसेंट के बारे में बोलते बोलते देखते हैं कि उनको भी इतना मतलब कंफ्यूजन होता है। जो यदि मैम मैं सुन नहीं पाऊंगी तो फिर वो लिखना पड़ेगा, वो एग्जाम में मैं कैसे क्या करूंगी फिर? ये जब सुनाई, ये आप पढ़ाई कर
आपका क्लास पढ़ाने का है क्या? यू हैव टू टीच इन द क्लास और यू जस्ट हैव टू गो टू द स्कूल? जी हेलो, सो यू कैन, थैंक यू। आप सुनते रहे बस, हेलो। बुक और बाद में जाके देख लेना। हाँ हेलो। बोलिए। जी मैडम, ये बोलिए। थोड़ी दिक्कत तो आती है, ये वाली जो मैडम बोली है, हाँ क्लास लेने वाली, अच्छा, थोड़ा सा कि उसी टाइम में हाँ क्लास भी है अभी, और उसी टाइम में हाँ। थोड़ा सा ये ट्रेनिंग का भी आ जाता है। तो स्कूल ने कोई सिस्टम नहीं बताया? जी मैडम, अभी तो एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब जो यहाँ वहाँ थोड़ा अरेंजमेंट लगा लगा के। वो बोलते हैं मैम, वो बोलते हैं कि वो आपका काम है वो यहाँ लेना, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, वो लगा के छोड़ दीजिए और आप क्लास लीजिए। नहीं 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 मैडम, सॉरी टू इंटरफियर, ये आप प्रिंसिपल को बोलना पड़ेगा कि आप अगर नहीं परमिशन दे रहे हैं तो रिटिन में दे दीजिए, फिर समिति को वो फॉरवर्ड कर देंगे कि हमको टाइम नहीं दिया जा रहा है, कोर्स कैसे होगा कंप्लीट ऐसे। ठीक ठीक। आप जी प्रिंसिपल थैंक यू। को बोलिए मैडम। जी थैंक यू सर। हाँ प्रिंसिपल क्योंकि को ही आप बोलना लोगों को होगा कि तो हमारा उसमें- ये नहीं, प्रिंसिपल को ही बोली थी, वो बोलते हैं नहीं आप वो कान में लगा के वो छोड़ दीजिए, वो ऑनलाइन वो करके कौन सुनता है, और आप क्लास लीजिए। ठीक है, वैसा वाला वो आप रिटिन में लिख करके दीजिए, बोलिए रिटिन में जी देंगे, वो समिति को भेज दीजिए। यहाँ जी पे तो हम बच्चों को सही करने की बात कर रहे हैं, जी है ना? बच्चों को बोल रहे हैं कि बी ऑनेस्ट, बी सिंसियर, तो हम वो उसका उल्टा कैसे करें जी मैम। ना? हर जो भी काम करते हैं, हर कोई आदमी, बच्चा हो या बड़ा, जो करते हैं दे शुड बी वेरी सिंसियर टू देमसेल्व्स फर्स्ट। मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो क्या सिंसियरली मैं ट्राई कर रही हूँ। हमारे प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि वो क्लास में नहीं नहीं इसको चालू करके छोड़ दीजिए और आप क्लास में। हाँ ऐसे ये तो सही नहीं है फिर, क्योंकि अगर प्रिंसिपल को आपने कन्विंस नहीं किया कि ये क्लास के बाद आपको एग्जाम भी देना होता है, तो उनको लगेगा सर मैम, वो 5 बजे से मेरी ये क्लास हो रही थी और मेरा एग्जाम ड्यूटी था, तो मैं उससे पहले ही उनको इन्फॉर्म कर चुकी थी, तो वो बोले उस टाइम भी कि आप उसको लगा के छोड़ दीजिए और एग्जाम ड्यूटी कीजिए। मैम एग्जाम ड्यूटी तो ऐसा होता है कि अगर कुछ वो कैमरे में देख रहे हैं, बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, हम इधर क्लास कर रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर आएगा ना रिस्क। सही बात। वो बोलते हैं कान में वो लगा के ऐसे ही वो ऑन करके छोड़ दीजिए और आप ये कीजिए एग्जाम ड्यूटी। आपने क्या क्या? तो मैम मैं वही की थी। अच्छा, अब क्या बोले, क्योंकि ये तो वैसे भी ये तो अंडरस्टैंडिंग टीचर्स इश्यूज भी होना चाहिए, है ना? मैडम, सारा सा पार्शियलिटी हो रहा है नवोदय विद्यालय में। जब पीजीटी टीजीटी सब्जेक्ट टीचर जब ट्रेनिंग करते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। अच्छा जब म्यूजिक टीचर मैम आर्ट एक लाइब्रेरियन चीज ट्रेनिंग और कर है रहे कि थे उनको क्लास में बोला जाता एग्जाम है कि ड्यूटी में क्लास फोन कीजिए अलाउ नहीं है। उसके बाद में कीजिए। अच्छा जी मैम। जब लाइब्रेरियन म्यूजिक टीचर और पीईटी लोग करते हैं ट्रेनिंग, सीपीडीटी कोई सा भी ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो हाँ उस टाइम बोला जाता है कि आप वो ट्रेनिंग करते रहो, क्लास करते रहो। और जब कोई सब्जेक्ट टीचर ये सीपीडीटी का ट्रेनिंग किया तो उनको छोड़ दिया गया, चलो अच्छा 2 घंटा उनको माफ कर दिया गया। जी अच्छा तो मैम। ये हेलो थोड़ा मैम, आप रिसोर्स पर्सन होने के नाते मैडम थोड़ा एक उसका भी थोड़ा स्ट्रांग इन्फॉर्मेशन भिजवाइए स्कूल को, जी जी ताकि मैम। हमको भी 2 घंटा का थोड़ा कंसंट्रेट करके ट्रेनिंग करवाने की कोई चांस मिले। मैं जी मैम। इसमें तो मेरा कोई होल्ड नहीं है स्कूल के ऊपर, लेकिन हमारा कंट्रोल है अपने बिहेवियर पे, और अपना बिहेवियर भी इतना मॉरल होना चाहिए कि मुझे अभी स्कूल में अगर आप कन्विंस्ड हो कि आपको क्या चाहिए, उसी हिसाब से आप अपने प्रिंसिपल को भी कन्विंस करा सकते हो, मुझे लगता है, क्योंकि उनके पास भी कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा। मैं तो लिख कर ईमेल कर दी थी उनको कि मेरा इतने बजे से टाइम है और इतने बजे से वो मतलब 5 बजे से 7 बजे तक मेरा ये है, इसलिए मुझे मुक्त किया जाए ये ड्यूटी से, एग्जाम ड्यूटी से। लेकिन वो मेल करने के बाद भी वो नहीं सुने, ऐसे ही बोलते हैं मैम। अच्छा, लेकिन आप लोगों को तो यूज किया गया है इस ट्रेनिंग के लिए स्कूल की तरफ से, है ना? और मैम एक चीज और है कि एग्जाम ड्यूटी में फोन अलाउ नहीं है, तो फिर ट्रेनिंग कैसे करेंगे? शाम वाली जो 5 बजे की ट्रेनिंग थी, जी मैम, जी उसका मैम, कुछ ऐसे सोल्यूशन ही है। बताइए। हेलो हेलो अच्छा हाँ हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। मैडम, आप ट्रेनिंग कंटिन्यू करिए मैडम, अब दिक्कत तो अब होती रहती है। हाँ जी वेरी गुड, दैट शुड बी द मैडम राइट। ट्रेनिंग कंटिन्यू करिए। अभी जो इश्यूज आ रहे हैं उसके लिए आज 4:30 बजे से है मीटिंग, उसमें आप लोग अपना बात रखिएगा इसके लिए। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, थैंक यू।
क्योंकि हमको कोर्स भी खत्म करना है ना, क्योंकि आपका तो ये सर्टिफिकेट डिपेंड करता है कोर्स पे भी, है ना। ठीक है, बस आप सुनते रहिए ताकि आपको कोई सा चीज नया ना लगे। आप बुक निकाल के देखो तो आपको कोई मतलब ये नहीं लगेगा ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये क्या आ गया बुक में। इसीलिए आप सुनते रहिए, पढ़ाती जाऊंगी मैं, आपको मालूम है कौन कौन से पेपर में कहाँ पे है ये सब। जी उसके मैम। बाद पढ़ाई करके एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। थैंक यू मैम। कोई अनसुना नहीं लगे, जैसे जैसे विगोत्स्की का थ्योरी हमने कहा, तो आपको ये नहीं लगेगा ये क्या वर्ड आ गया, हमने तो कभी सुना नहीं है ना। बाकी वही तो चैलेंजेस है, बच्चों को हैंडल करना जैसे चैलेंज है, एक ये भी कोर्स करके उनको समझने के लिए जो कोर्स कर रहे हैं वो भी एक चैलेंज ही समझ लीजिए, जो कि टीचर्स रोज करते हैं। और एक दूसरा चैलेंज आ गया, सोच के आप इसको हैंडल कर लीजिए, बाद में देखते हैं स्कूल क्या रूल बिठाता है। Hello. ठीक है। जी मैम। Madam, one thing I would like to know, you have given a typical example of adolescent. What is this example called? टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ Adolescent. You have given some one student or a boy take one's bicycle and run away. They're just showing off. So what is this particular name of this? दिस इज अ पर्टिकुलर एडोलेसेंट स्पेसिफिक बिहेवियर, इसको मान के चलिए, क्योंकि ये बड़े तो नहीं करते हैं, इसी एज पे यही करते हैं। चैलेंजिंग जो होता है उनके लिए, उनका ये हार्मोनल रश होता है। Is there any name for this behavior? No. चैलेंज टेकिंग, रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर। Okay. रिस्क टेकिंग बिहेवियर उनके एज में ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे हमारा हार्मोन रश होता है मेरी गो राउंड पे बैठने से, जाइंट व्हील पे बैठने से कैसे फीलिंग आता है, वैसे ही उनको भी फीलिंग आता है जो ऐसे लुची छुपी काम करते हैं, छुपा के जो काम करते हैं, डेयर डेविल काम करते हैं, उनको लगता है हमको कुछ नहीं होगा, अभी तो जाके आ जाता हूँ। And some of them show these type of activities in higher age group. That means they have not grown up yet, na? Not really actually. ये जो एडोलेसेंट स्टेज है, हम आगे जाके ये भी देखेंगे उनका रिस्क टेकिंग बिहेवियर कितना बढ़ जाता है, जैसे ब्लेड से हाथ काटना, ये सब करते हैं जो ये। लेकिन मैडम एडोलसेंट जैसे जो हमें समझाया जा रहा है, इसमें किस एज ग्रुप तक रखते हैं एडोलसेंट में? एडोलेसेंट एज एक्चुअली 9 to 19 को मान के चलिए, क्योंकि प्री एडोलेसेंट भी एडोलेसेंस में आ जाता है। अब इतना वो एक्सपोजर हो जा रहा है कि 9-10 के टाइम से, क्यों, जबकि उनकी टीन एज शुरू नहीं हुआ है, फिर भी उनको प्री टीन जो है ये प्री एडोलेसेंट स्टेज में आ जाते हैं, अगर बिहेवियर देखा जाए तो। क्योंकि कई इसी हिसाब से आप बोल रहे हैं कि मैच्योर्ड है कि नहीं, लेकिन क्योंकि आप बिहेवियर देख के बोलते हैं, एज थोड़ी ना देख। मैडम वो क्या है कि जैसे हम लोग तो एज ग्रुप और क्लासेस देखते हैं ज्यादातर। तो जैसे क्लासेस में 6 to 8 बिहेवियर अलग होता है, फिर 9 to 12 बिहेवियर में मेजर चेंजेस फिर अलग होते हैं, राइट। और उस समय उनका बॉडी और अदर चेंजेस भी एक साथ ही होते हैं। यस, बिकॉज जो 9-10 वाले बोले ना, उनका हार्मोनल लेवल्स भी तो डिफरेंट होते हैं। जी। तो ये हार्मोन्स आर मेकिंग देम बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, और उनके बिहेवियर में भी मतलब ड्रास्टिक बिगेस्ट चेंज आते हैं। यस, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम, बेचारे उनको भी तो नहीं पता चलता है मेरे साथ हो क्या रहा है, ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उनका इतना हार्मोन्स ज्यादा होता है। तो उसका रिलीज के लिए जो बच्चे खेल में चले जाते हैं कभी, तो दे बिकम एक्सपर्ट्स इन सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, देखा होगा आपने। जी मैडम जी। सो ये एज एक्चुअली कुछ बनने का भी होता है, तो वो उनका एक्स्ट्रा एनर्जी जो हार्मोन के वजह से हो, एज के वजह से हो, या मतलब उनका एडोलेसेंट स्टेज की वजह से हो, वो किस डायरेक्शन में वो डाइवर्ट करते हैं, वो मैटर करता है। एंड एज टीचर्स एक्चुअली यू आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव इट अ प्रॉपर डायरेक्शन। सो आप उनको ऐसे देखो तो एज के हिसाब से सबका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि
कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, फैमिली वैल्यूज डिफरेंट होता है, तो ये सब भी मैटर करता है बच्चा कैसा बनेगा। प्लस आप कैसे उनको हैंडल करते हैं और उनका एक्स्ट्रा एनर्जी किस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है? यस जी मैडम। सो विगोत्स्की का थ्योरी, ये सब जो थ्योरी है ना, ये उनको समझने की अच्छे से समझने की थ्योरीज है। हम जो बोल रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग एडोलेसेंट इश्यूज, हाउ विल वी अंडरस्टैंड एडोलेसेंस? बाय फोकसिंग ऑन द theories which talks about the stage adolescence. So Vygotsky is one of those. उनका सोशो कल्चरल थ्योरी है। He has focused on cognitive development, focusing on the socio cultural aspect of the person. So ये बोलते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक होता है, जो पोटेंशियल एरिया ऑफ डेवलपमेंट होता है, जो हर बच्चा तो 98% नहीं लाएगा, लेकिन बच्चे होते हैं भी 98% लाते हैं। उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे बच्चों को उसको आता है तो सबका आना जरूरी है। सो हर बच्चे का प्रॉक्सिमल जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट डिफरेंट होता है। सो व्हाट द चाइल्ड कैन अचीव बाय गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, फ्रॉम द टीचर्स। सो ये जो गाइडेड लर्निंग होता है, ये होता है थ्रू स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब अगर किसी का ये कैपेबिलिटी है कुछ अचीव करने के लिए, आपको एज अ टीचर मालूम होता होगा कौन सा बच्चा आपका 90s में लाएगा 10th में, है ना? यह पता नहीं चलता है, आपको पता चलता होगा? जी पता चल जाता है, थोड़ा बहुत पता चलता है मैडम, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ सेशन में यदि वो अच्छा करता है और बाद के सेशन में नहीं करता तो चेंजेस उनके भी चेंजेस चलते रहते हैं। हाँ, पर आप जब आइडेंटिफाई करते हो इस बच्चे का प्रोबेबिलिटी है टू डू वेल, व्हाट डू? यू सिलेक्ट देम एंड हेल्प देम टू रीच अ पर्टिकुलर हाइट। यस मैडम, यस। सो ये है स्कैफोल्डिंग। उनको गाइड करने से आपको मालूम है इसके अंदर तो भरपूर वो बुद्धि है, ये बस उसको लगाने की जरूरत है। सो स्कैफोल्डिंग इज टू co-construct the knowledge and facilitate the child's zone of proximal development. आप थोड़ा सा उसको बढ़ावा दो तो वो अपना proximal development पे पहुंच जाता है। ये भी आपको पता चल जाता होगा कि कौन से बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी है। उसी हिसाब से आप बच्चों को प्रमोट भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, है ना? And for learning and intelligence also, आपने देखा होगा कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो उनको मिलता है वो ग्रेजुअली एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे चलता है। जैसे वो मुंह पे एग्जाम्पल दे दे के आपको एक्सप्लेन करा सकते हैं, मुंह पे मतलब क्वेश्चन पूछो तो दे डोंट हैव टू वर्क इट आउट बाय होल्डिंग अ पेन एंड पेपर। सो ये जो कॉन्सेप्ट है विगोत्स्की का, ये है कि इंस्ट्रक्शनल मेथड्स जो है वो यूज होता है बच्चों के लिए अकॉर्डिंग टू द एज दैट दे बिलोंग टू एंड डिपेंडिंग ऑन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड। इसीलिए क्लास में आप पढ़ाते पढ़ाते इन जनरल बच्चों को पढ़ा दे, फिर मालूम पड़ा आपको, फिर याद किसी का फेशियल एक्सप्रेशन देख के आपको लगता है नहीं इनके समझ में नहीं आया होगा, देन यू सिंप्लीफाई इट अगेन, एक्सप्लेन दैट करते हैं आप। So you are trying to reach to the developmental capability of all the children taken together as a group. फिर उनका proximal development, zone of proximal development different हो, फिर भी आप उनको सबको address करते हैं। And for intelligence also, since cognitive development के बारे में हम बात कर रहे हैं, cognitive development मतलब उनका higher mental functioning, higher mental functioning में intelligence आता है। So Howard Gardner was the person who proposed the theory of multiple intelligence. Intelligence एक ही फील्ड में नहीं होता है, जैसे म्यूजिकल एबिलिटीज में, बॉडीली काइनेस्थेटिक, ये सब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में, ये सब में आपका इंटेलिजेंस झलकता है। कौन कितना इंटेलिजेंट है दूसरों को समझने में, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, खुद को समझना, वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी, ये सब इंटेलिजेंस के इंडिकेटर्स होते हैं।
So Gardner talks about 9 types of intelligence and each child का potential जो है according to the intellectual ability in different fields वो उनको कैटेगराइज करते हैं। ये नहीं कि बच्चे का अगर मैथ्स नहीं हो रहा है तो वो डम है या बुद्धू है। वो ये भी हो सकता है कि उसका बस मैथ्स मैथमेटिकल एबिलिटी ठीक नहीं है पर बाकी स्पेशल एबिलिटी और बॉडीली काइनेस्थेटिक ये सब उनका लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग कैपेसिटी उनका अच्छा है। सो इंटेलिजेंस इज अबाउट 9 indicators that he has talked about. Then there is this triarchic theory of Robert Sternberg, which is a triarchic theory of intelligence. There are 3 types of intelligence, Sternberg says: analytical intelligence, practical intelligence and creative intelligence. Analytical intelligence है आपका the ability to analyze and solve problems. आपको कैसे सॉल्व करने में मजा आता है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस उसके हिसाब से आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस ज्यादा है बोलेंगे। क्रिएटिव इंटेलिजेंस है टू थिंक इनोवेटिवली, नया आइडियाज इंप्लीमेंट करने के लिए, नया आइडियाज जनरेट होते हैं जो ये सब आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस में आता है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। आपने देखा होगा बच्चे क्लास में इतने अच्छे नहीं होंगे लेकिन अगर कोई दिक्कत आ जाए तो हीरो बन के निकल जाते हैं। तुरंत ही उनको समझ में आ जाता है कि ये मेरा फोते है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एबिलिटी जो है उनका सिचुएशन के हिसाब से कॉन्टेक्सचुअल उनका होता है। सो ये सब है एडोलेसेंट डेवलपमेंट का इंडिकेटर। Three types of intelligence was given by Robert Sternberg. So उसको अगर स्टर्नबर्ग का थ्योरी देखा जाए तो एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल 3 टाइप्स इंटेलिजेंस के बारे में वो बात कर रहे हैं। एनालिटिकल है क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनका अच्छा होता है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस में देयर आर न्यू आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज एंड दे कैन इमेजिन ऑल्सो क्वाइट एफिशिएंटली। प्रैक्टिकल जो इंटेलिजेंस होता है उनका प्रैक्टिकल है स्ट्रीट स्मार्ट, जैसे बताया हमने, ये कॉमन सेंस उनका ज्यादा होता है। और स्ट्रीट स्मार्ट जो बोलते हैं तो तुरंत उनको प्रॉब्लम कुछ आ जाए तो अच्छे खासे बच्चे भी जो इंटेलिजेंट होते हैं, आपके हिसाब से इंटेलिजेंट है, वो डर के चुप बैठ जाते हैं। पर ये जो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इनका ज्यादा होता है। दे कैन हैंडल द सिचुएशन वेरी एफिशिएंटली, उनका कॉमन सेंस ज्यादा होता है। ठीक है। देन क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड? थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर ऑफ द एडोलेसेंट हैज टू बी डेवलप्ड। तो उनको ऐसे ट्रेनिंग दिया जाए जिसमें उनको खुद का नया सिचुएशन का, अगर उनको दे हैव टू come up with a solution also, they can come up with the solution for a new situation. So innovative ideas हो गया आपका क्रिएटिविटी में। क्रिटिकल थिंकिंग वो एनालाइज करके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ द सॉल्यूशन वो जज करके दे कैन टेक डिसीजन फॉर द करंट सिचुएशन। और प्रॉब्लम सॉल्विंग है उनका, दिस आर द क्राइटेरिया दे विल बी फॉलोइंग फॉर रीचिंग अ सॉल्यूशन इन देयर डे टू डे लाइफ। एडोलेसेंट जो है बिकॉज ऑफ देयर एज एक्चुअली दे विल बी ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स। इसीलिए वो देखा होगा आपने, मोटरसाइकिल पे बैठ के उल्टा बैठेंगे, ट्रेन चला रहा है उल्टा बैठेंगे, नहीं तो भाग के जाके कुछ भाग के आएंगे, जंप कर देंगे, दीवार फांद के जाने का सडनली उनको मन करता है। क्यों किया पूछो तो बोलेंगे पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, बस ऐसे दीवार फांद के चला गया। So these sudden ideas also come to them just to experiment with their environment. So these are innovative ideas they will be experimenting on. The energy, enthusiasm और जो courage होता है adolescents का, ये इनको लाना है एक कंट्रोल में, ताकि वो रैशनली सोच सके, क्रिटिकली
सोच सके और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से अच्छे से निकाल सके. So how to promote thinking and problem solving behavior in such adolescents? As a teacher, you can relate the classroom learning to real life situations. जैसे क्लासरूम में आप पढ़ाए हैं तो उसको एग्जाम्पल दे के रियल लाइफ का सिचुएशन भी आप बोल सकते हो, ताकि दे विल know that we can switch over from this situation to a different situation, but the same solution, same type of thinking will work, because इसी केस में मुझे ये हेल्प इसी में मिला, तो फ्यूचर में भी मुझे ऐसे ही सिचुएशन आए तो ऐसे हैंडल करना है. देन हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस जहाँ पे दे कैन हैव डिफरेंट अल्टरनेटिव्स टू अ प्रॉब्लम. आप जैसे क्लास में पूछते हैं क्वेश्चन, फिर उनको पूछते हैं दूसरा तरीका क्या है इसको समझने का, दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्यूशन निकालने का. सो यू हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज टू help the child to come up with different alternatives. Then encourage, उनको कोई क्वेश्चन पूछे तो उनको encourage करना चाहिए, ना कि उनको चुप करके बिठा दिया जाए. If you are promoting them to ask questions and participate in the class, then they will be encouraged to do well. Then you have to help the students to analyze, give reasons, proper reasoning ability, and engage in evidence-based thinking. Evidence-based thinking मतलब अगर एक तरीके का thinking उनको help में आया तो ये रह गया वो evidence में, उसका example बन गया कि ये ऐसे ऐसे step में काम करने से ये solution मिलता है. Facilitating out of the box thinking also is very important in students. उनको नया तरीका से सोचने को बोलने से उनको प्रेरणा मिलता है कि वो भी कुछ कर सकते हैं, अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. But there are cultural influences in physical and cognitive development also. Development is a universal process, but when the child is going through different stages of development, from infancy to childhood to adolescence, and then they become adults and they get old eventually. So this is a smooth development stage which is characterized by fluidity in age range. ये नहीं कि फिक्स्ड एज में एक ऐसा फिक्स्ड बिहेवियर ही दिखाएंगे ये लोग. So there will be fluid in nature, एक स्मूथ डेवलपमेंट. पहले बदमाशी करते थे, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 14-15 का हो गया, अब वो बदमाशी नहीं कर रहा है, पढ़ाई में सीरियस हो गया, क्योंकि आपको लगेगा कि ये क्लास हायर क्लास में आ गया तो ये स्मूथ बिहेवियर दिखा रहा है. ये नहीं, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, एंड जिसमें ये वीड आउट करते हैं ना, जो निकाल के फेंक देते हैं, जो चाहिए रखते हैं और जो नहीं चाहिए उसको निकाल के फेंक देते हैं. ये बच्चे भी वैसे ही सिलेक्ट करते हैं, ये बिहेवियर मेरे पे ज़्यादा सूट करता है, ऐसे करूँ तो मुझे ज़्यादा वाहवाह मिलता है. तो वो भी उनका डेवलपमेंट का एक क्राइटेरिया है, फ्लूइडिटी ऑफ एज रेंज. सो उसके हिसाब से ये लोग अपना बिहेवियर ट्यूनिंग करते हैं. Then socialization process and parenting practices, expectations क्या है सोसाइटी का, ये सब इन्फ्लुएंस करता है उनके बच्चे कैसे सोचे और कैसे बिहेव करें. So the type of socialization process they are going through, parenting practices, जैसे उनके पेरेंट्स तो मतलब बीच बीच में ही आते होंगे, नहीं तो ये लोग जो छुट्टी पे जाते हैं, बट फैमिली का इतना इम्पोर्टेंस होता है, ये रहे पास में या ना रहे, लेकिन पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस का बहुत डीप इम्पैक्ट होता है ऑन द चाइल्ड्स बिहेवियर व्हेन दे आर ग्रोइंग अप. देन द एनवायरमेंटल इनपुट एंड अपॉर्चुनिटीज, ये भी उनको हेल्प करता है उनका फिजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में. और कल्चर का, लैंग्वेज, बहुत सारे बच्चे होंगे जो दूसरे लैंग्वेज में बात करते होंगे, मल्टीलिंगुअल टीचर्स होते हैं जो उनको समझाते हैं, फिर अपने लैंग्वेज में कुछ सुने होंगे बचपन में, तो उसको समझने के लिए ये लैंग्वेज इज अ वेरी इम्पोर्टेंट टूल
जो बच्चे का इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए क्योंकि एडोलेसेंट ग्रुप एक होमोजेनस ग्रुप दिखता है पर है नहीं। So while planning the teaching learning experiences or the strategies for adolescent development, the planning has to be differently structured. ये नहीं कि हर साल मुझे ऐसे ही पढ़ाना चाहिए, ऐसे ही इसी पेस में नहीं। आपने देखा होगा कि जितने साल में आप पढ़ा रहे हैं उसी बीच बच्चों में बहुत चेंजेस आया है ना। आप 5 साल पहले जैसे टाइप के बच्चे देखते थे, आजकल क्या वही वैसे टाइप के बच्चे आते हैं? आपको अपने टीचिंग स्टाइल में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ती है ना। है ना। Yes, ma'am. So if they are changing so drastically, you imagine what they are going through as a part of the culture, and because of the influence of the family values and family patterns of thinking, उनका behavior भी influence होता है। ठीक है। Then what are the developmental problems? ये तो हो गया वो कैसे डेवलप करते हैं, उनका क्या कौन सा डेवलपमेंट जरूरी है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा थ्योरी है, ये सब देख लिए। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या होता है एडोलेसेंट ग्रुप में देखेंगे। जैसे स्पेशली क्यों देखेंगे, क्योंकि ये रेसिडेंशियल स्कूल्स के बच्चे हैं और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी डिपेंड करता है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है। So most common problems that you will find in adolescents regarding their physical development is problems related to body image. बॉडी इमेज मतलब कोई अगर हाइट में कम है तो उसको वो कैसे हैंडल करता है, सब छोटू छोटू उसको बुलाएंगे या दे गिव नेम्स एक्चुअली। कोई मोटा है तो उसको भी कॉन्शियस फील कराते हैं बाय गिविंग नेम्स। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई सीधा नहीं चलता है, कोई डिफेक्ट है। कंसर्न्स होता है ईटिंग पैटर्न्स का, कोई ज़्यादा खाता है तो पेटू पेटू बुलाते हैं, कोई नहीं खाता है। ये सब कंसर्न्स है ड्यूरिंग एडोलेसेंस जो देखा जाता है। रिस्क बिहेवियर, रिस्क टेकिंग बिहेवियर देखा जाता है। So these are the different types of problem patterns that is observed in the behavior of these adolescents. हम देखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। उनको ड्रग्स तो है नहीं आपके स्कूल के बच्चों का, लेकिन पुड़िया बुड़िया खा लेते होंगे बच्चे, है ना। खाते हैं या नहीं? नहीं मैडम। नहीं? अच्छा, तब तो आप लकी है, आपके बच्चों में ये सब हैबिट्स नहीं है। सो ईटिंग डिसऑर्डर्स होता है, उनका बॉडी इमेज होता है, वो देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों में। सो व्हाट इज द रोल ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल्स टू फैसिलिटेट द फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ दिस एडोलेसेंट स्टूडेंट्स? ये है हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स करा सकते हैं, एंड जो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स कराते हैं दे नीड टू बी ऑन पॉइंट, स्पेसिफिक, इंटरेस्टिंग होना चाहिए बच्चों के लिए, नहीं तो वो सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। इंटीग्रेट हेल्थ अवेयरनेस इनटू द करिकुलम, devote specific time for sports and physical activities, motivates the adolescents to engage in activities, then instilling self confidence, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होने की बहुत ज़रूरत है। एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलना चाहिए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्टिव अप्रोच होना चाहिए।
एनकरेज उनकी जो डाइवर्स व्यूज होते हैं और क्रिएटिविटी होता है एडोलेसेंट में, उसको एनकरेज करना चाहिए, ना कि उनको जबरदस्ती बुक में जो पढ़ाया हो गया है वही समझो वही लिखो करके बोलना चाहिए। अगर वो कुछ इनोवेटिव वे ऑफ थिंकिंग और नया तरीके से कुछ अच्छा लिख के लाते हैं तो उसको एनकरेज करना चाहिए। Each child is unique, so each student will have potential which is specific to them. वो अपने हिसाब से वो यूनिक होते हैं। तो ये टीचर्स का काम बन जाता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो टैलेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करें और एनकरेज कैसे करें, सो दैट वो बच्चा जो है उसको एक्सप्रेस करा सकता है अपना आइडियाज और अपना टैलेंट को। इस हिसाब से हर बच्चा विनर होगा अपने क्षेत्र में, जो अपने क्षेत्र में जो करते हैं ये बच्चे उसको अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनको रिडिक्यूल नहीं किया। उनको अगर उन पे हंसे नया तरीके से सोचने से, ये सब उनको बोर कर सकता है। लेकिन आप अगर उनको एनकरेज करें और मोटिवेट करें टू थिंक डिफरेंटली, टू help in reaching conclusions on their own or to think out of the box, ये सब उनको हेल्प करता है। ठीक है, कोई क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अच्छा ये आज का क्लास 11:30 तक है या 12 तक है? 12 बजे तक। 12 बजे तक। ठीक है। नो मैम, 1 बजे तक है। 12 बजे तक। 12 बजे तक है। 10 to मैम 12। हमारे यहाँ 1 बजे तक है। ये 10 से 12 तक है। 10 से 12। यस। अच्छा ये सीपीडीटी वाला, हाँ ये तो 10 से 12 ही है। ठीक है, ओके। फिर आता है सपोर्टिंग साइको सोशल डेवलपमेंट। वो हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें ईटिंग हैबिट्स, स्लीप पैटर्न्स और एक्टिव फिजिकल एक्सरसाइजेस आया आपका। फिर उनका साइको सोशल डेवलपमेंट कैसे बने हम देखेंगे उसमें। साइको सोशल डेवलपमेंट मतलब सोशल सिचुएशन में उनको कैसे एडजस्ट करे ये लोग अपना, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो उनको होता है बिकॉज ऑफ देयर ग्रोइंग अप स्टेज एंड बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, वो कैसे उनका पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो उनका डेवलप करता है उसको कैसे एक्सेप्टेबल बनाए सोशल स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये सब देखेंगे हम। साइकोसोशल डेवलपमेंट मतलब पर्सनल और सोशल चेंजेस जो होते हैं वो कल्चरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। So when the adolescent is growing up, they develop a sense of self. पहले बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चे अपने नाम पे 2 साल के बाद आपने बच्चे के साथ बात किया होगा तो बच्चा बोलेगा ये मैं खाऊंगा, ये मेरा है, नहीं तो ये बाबू का है, ये या अपना नाम को लेके उनको आइडेंटिटी होता है। मैं जो बोलते हैं वो बहुत लेट से आता है, लेकिन द चेंजिंग सेल्फ, जो सेल्फ के साथ जो वो कॉन्फिडेंस आता है वो एडोलेसेंट के स्टेज पे आता है। वो मैं ऐसे कर सकता हूँ, वो मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो सेंस ऑफ सेल्फ इज डेवलपिंग। सो द आइडिया ऑफ मी इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दिस एडोलेसेंट स्टेज। तो उनको लगता है कि आई हैव टू बी स्मार्ट, मुझे स्मार्ट एक्ट करना चाहिए, मेरा कपड़े सही होने चाहिए, हेयर कट मेरा ऐसे होना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स और पेरेंट्स मुझे ऐसे देखना चाहते हैं तो मैं ऐसे ही बनूंगा। और कोई उनको अगर मजाक मजाक में कुछ बोल दे तो उनको बहुत हर्ट होता है। ये टिपिकल एडोलेसेंट बिहेवियर होता है, क्योंकि उनका देखा होगा आपने हेयर कट, उनका they are very particular actually about the way they look. घंटा घंटा अपना वो मिरर देखते रहेंगे, ये यही एज है। नहीं तो फूड हैबिट्स उनका जो है, कोई देख के ऐसे बॉडी बनाने का मन करता है तो सेलिब्रेट करते हैं अपना बर्थडे सब। जो देखिए आप अगर देखेंगे तो they will be emphasizing on the idea that they have created about themselves in their own mind.
and they will try to implement that idea onto the minds of others, ताकि वो ऐसे ही he or she will be perceived in those lines only. ठीक है. एडोलेसेंट्स को, ये जो इसी एज ग्रुप के बच्चे हैं 9 to 19, they will try to discover a unique identity. एक्चुअली उनका यूनिक आइडेंटिटी होना जरूरी है. ये नहीं कि बाकी दूसरे के साथ पीयर प्रेशर होता है उनको, पीयर ग्रुप के साथ वो जेल करने के लिए they will try to adapt to the qualities of the peer group again. They will try to fit into the different roles about themselves and about others. तो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट इज अ कॉन्शियस कॉग्निटिव एंड एक्सपीरियंशियल परसेप्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ वनसेल्फ. तो वो अपने बारे में क्या सोचते हैं कॉन्शियसली और कॉग्निटिवली, एंड वो कैसे एक्सपीरियंस करते हैं अपने आप को, ये है सेल्फ कॉन्सेप्ट उनका. ठीक है. एंड व्हेन दे एंटर द, समटाइम्स वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टोरी बात पे भी बिलीव कर जाते हैं. जैसे उनको पूछो आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट, वो बोलेंगे आई एम अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. आई एम शाय बट नॉट always. When I am in my comfortable group, I can be very extroverted. So they are also trying to find out मैं हूँ क्या. Trying to find out what they actually are is also a bigger task at this stage. Then self-esteem. As a teacher, you can adopt different there are few tips for the teachers to raise positive self concept among adolescents. क्योंकि उनका self concept जो है उसके लिए उनको अप्रूवल की जरूरत होती है, क्योंकि ये तो यहाँ पे पेरेंट्स नहीं है, इसीलिए टीचर्स का अप्रूवल बहुत जरूरी है. सो एज अ टीचर यू कैन अप्रिशिएट द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स इन स्पेसिफिक एरियाज, इन स्पेसिफिक डोमेन्स. उनका जो आप देखते हैं उनको आप इनकरेज कर सकते हैं. उनके एफर्ट को क्लास के, जैसे बच्चों को डांटते तो सबके सामने नहीं, उनको बुला के अलग से डांट सकते हैं, लेकिन उनको प्रेज करते हैं जो क्लास के सामने कीजिए, सबके सामने, ताकि उनका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बने. एंड लिसन विथ योर ईयर्स एंड आईज व्हेन एडोलेसेंट स्पीक. उनको अच्छे से मन लगा के सुनने की भी जरूरत होती है, नहीं तो वो लोग बंद हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे ज़्यादा. उनको जब लगेगा कि मेरी बात कोई सुनता नहीं है तो वो ओपन अप नहीं करेंगे. और गाइडेंस और सपोर्ट उनको देने की ज़रूरत होती है. नेगेटिव कमेंट्स का फीडबैक उनको देने की ज़रूरत नहीं है, अवॉइड कीजिए. उनको नेगेटिव कमेंट्स नहीं दे. अगर देना है तो उनको अलग से बुला के दे जो बाकी बच्चे नहीं सुन सके, क्योंकि फिर उनमें ये चिढ़ावा आ जाता है, चिढ़ा चिढ़ा के उनको तंग करते हैं. अवॉइड कंपेयरिंग विद अदर्स. ये भी कंपैरिजन अच्छा नहीं है. ना ही बच्चों को कंपेयर करना चाहिए, माँ बाप को करना चाहिए, ना ही टीचर्स को करना चाहिए. उससे उनकी they get very disheartened and they will stop actually thriving for excellence. ठीक है. Then self-esteem. Self-esteem in a person is actually about one's own worth. मेरा अपना कितना वैल्यू है वो है सेल्फ एस्टीम. एडोलेसेंट का वैरिंग डिग्रीज ऑफ सेल्फ एस्टीम होता है. वो कैसे एक्सपीरियंस करते हैं उसको डिपेंड करता है. वो फीडबैक जो घर से मिलता है, स्कूल से मिलता है, पीयर ग्रुप से मिलता है, उस पर उनका सेल्फ एस्टीम बेस होता है. ठीक है. एंड उसी हिसाब से वो अपने आप को नापते हैं. मल्टीपल डायमेंशंस एंड रिलेशनशिप जो उनका होता है, एक फ्रेंडशिप के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में, कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज में वो अपने खुद को कैपेबिलिटी को नापते हैं. देन दे गेट टू अ कंक्लूजन, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ. उनको पता चलता है जो फीडबैक मिलता है उनको उनके बिहेवियर के लिए बच्चों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, नहीं तो टीचर से. टीचर जैसे बोल दिया कि अरे तू तो बहुत ही कैपेबल लड़का है, तू ये कर सकता है, तो वो उनको ज़्यादा इनकरेज करता रहता है.
Then how to improve self-esteem among adolescents? You have to help the students identify the strengths and challenges and take a balanced view of self. उनको हेल्प करें आप, स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करेंगे अपना स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा चैलेंजिंग सिचुएशंस वो हैंडल किए हैं और कैसे अपने लाइफ को व्यू करें ताकि उनको अपना सेल्फ एस्टीम ज़्यादा अच्छा दिखे. You have to build self-worth, and then as a teacher you have to encourage positive self-talk. जैसे बच्चे आके सर मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, तो you have to be positive in your encouraging pattern of behavior. You have to encourage them by talking positively about their efforts. नहीं तेरे से हो पाएगा, मैंने तो देखा तूने कितना अच्छा किया और थोड़ा सा ट्राई कर ले, देख लेना कल तो और भी अच्छा करेगा. ऐसे एनकरेज, उनको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके उनको एनकरेज करना चाहिए. देन बैलेंस करना चाहिए, उनको फ्रीडम भी उनको देना चाहिए, बट विद द सेम टाइम फ्रीडम के साथ थोड़ा गाइडेंस भी उनको ज़रूरत है. ये तो बच्चे के वैसे तो बच्चे हैं, तो उनको गाइड करके उनको फ्रीडम भी देंगे और उनको जब ज़रूरत पड़े तो बैलेंस करने के लिए गाइडेंस भी देंगे. और एक थ्योरी है एरिक्सन्स थ्योरी. Erik Erikson was a psychologist who has talked about different stages of psychosocial development. In total, he has talked about 8 stages. Each stage is presented with a crisis and virtue. Then उसका negative outcome क्या होता है ये देखेंगे. जैसे 1 साल का बच्चा क्राइसिस है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट. 1 साल का बच्चों को आप जैसे हवा में उछाल के बच्चों को खेलते हैं ना, पेरेंट्स हैं या बड़े हैं, तो उस वक्त वो ट्रस्ट करना सीखते हैं कि मुझे तो ये मुझे गिरने नहीं देंगे, ये पकड़ लेंगे. सो ये हो गया ट्रस्ट इश्यूज उनका. अगर सही से किसी ने पकड़ा नहीं तो मिसट्रस्ट उनका आएगा, वो ज़्यादा चिल्ला के रोना शुरू कर देंगे. तो नेगेटिव आउटकम इसका है कि उनका फियर रेस्पॉन्स बैठ जाएगा. अगर गिर गए कभी तो वो देख के ही रोना शुरू कर देंगे. वो आदमी आया अंकल को देख के रोना शुरू, क्योंकि इसने मुझे गिरा दिया था. 18 months to 2 years autonomy versus shame and doubt. हम लोग ये सब नहीं देख के 6 to 12 इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ये स्टेज होता है उनका. वर्च्यू होता है कॉम्पिटेंस और प्राइड. इसी टाइम पे एक्चुअली उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है. नेगेटिव आउटकम उसका ये है कि उनको इंफीरियर फील हो सकता है, ताकि क्योंकि वो बाकी बच्चों जैसे नहीं है और उनको कोई नेगेटिव कमेंट दे दिया, इनको इनकरेज किसी ने नहीं किया, तो उसका रिजल्ट के हिसाब से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनको हो सकता है. और 5th स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन. ये एज होता है 13 to 18 के बीच में आता है. इसमें ये रेबेलियस नेचर उनका देखा जाता है. आपने देखा होगा इसी एज ग्रुप में बच्चे ज़्यादा रेबेलियस होते हैं. उनको कुछ करने को मना करो तो इफ़ इट इज़ नॉट गिवन with the proper explanation of the reason, then they will be very rebellious. Then 19 से 40 आप लोग तो वो हैंडल नहीं करते हैं. बस 13 to 18 is identity versus role confusion will be specifically used for the adolescent stage. Industry versus inferiority और identity versus role confusion. इंटीमेसी एंड आइसोलेशन वो थोड़ा थोड़ा देखा जाता है, क्योंकि ये स्टेजेस सब ओवरलैपिंग है. ये नहीं कि 18 साल तक ही दिखा जाएगा, उसके बाद नहीं. ये ओवर चेंजिंग होता है, ओवरलैपिंग होता है. तो ये सब जो एज का 8 स्टेज बोले हैं, तो दीज आर एप्लीकेबल फॉर द साइकोसोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. एरिक्सन ने कहा कि आइडेंटिटी डेवलपमेंट जो होता है वो थ्रू आउट लाइफ स्पैन डेवलप करता रहता है, बिकॉज वी कम अक्रॉस डिफरेंट पीपल इन आवर लाइफ. तो ये आइडेंटिटी डेवलपमेंट उनके हिसाब से वी कीप ऑन रिफाइनिंग आवर आइडेंटिटीज एज पर द पीपल वी मीट इन आवर लाइव्स. दिस थ्योरी इज self continues to evolve through all stages.
क्योंकि साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस हमको हर तरह के आते हैं, उसी हिसाब से हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट भी वी कीप चेंजिंग द सेल्फ कॉन्सेप्ट। आज जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं, 1 साल के बाद हम दूसरे तरीके से सोचेंगे, क्योंकि वी विल कम अक्रॉस मेनी पीपल इन आवर लाइफ एंड मेनी चेंजेस विल हैपन, विल सी मेनी चेंजेस, सो अकॉर्डिंगली आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट विल आल्सो चेंज। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बट ये जो एडोलेसेंट स्टेज होता है ये बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि ये टाइम पे मैक्सिमम हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है। So when we are talking about identity issues among adolescents, एक है उनका seeking status symbols। ये जो there are few common ways जिसमें adolescents जो दिखाते हैं self identity, they seek status symbol, like they will make their personality appear, उनको अपने ड्रेस के बारे में ज़्यादा वो कंसर्न रहेगा, कैसा हेयर स्टाइल बनाएंगे वो रहेगा, हेयर कलर कराते हैं आजकल बच्चे बहुत ही कम उम्र से। एंड हाई रिस्क बिहेवियर, ये अभी किसी ने पूछा ना कि इसको क्या बोलते हैं, तो उसको हाई रिस्क बिहेवियर बोलते हैं इनका एडोलेसेंस में जो देखा जाता है। दे विल स्टार्ट स्मोकिंग, देखा होगा आपने किया होगा कि नहीं नहीं मालूम, अपने बचपन में बीड़ी सिगरेट जो मिला आधा यूज़ किया हुआ उसको आग लगा के फिर से स्मोक करके थोड़ा सा देखने के लिए बड़े कैसे स्मोक करते हैं, ये बच्चे भी करते हैं। दे स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड अदर एक्टिविटीज टू गेट एक्सेप्टेंस अमंग द पीयर ग्रुप, क्योंकि बाकी सारे बच्चे भी करते हैं तो इनको भी करके उनके ग्रुप में इंक्लूड होने का मन करता है, और रेबेलियस नेचर एक होता है उनका। सो ये सब सेल्फ आइडेंटिटी में उनको बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। रेबेलियस नेचर जो दिखाते हैं ड्यू टू आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाते हैं, इंक्रीज्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के वजह से दिखाते हैं। दे वांट ऑटोनॉमी, उनको फ्रीडम चाहिए, इसीलिए रेबेलियस होते हैं। इसीलिए ये लोग पेरेंट्स को रेबेलियस नेचर दिखाते हैं। टीचर्स का भी कभी कभी बात नहीं मानते हैं, जो बोलेंगे उसका उल्टा करेंगे, क्योंकि उनके फ्रेंड्स उसके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं अगर वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करे तो। इसमें हीरो वर्शिप भी एक होता है, देखा जाए तो कोई बॉडी बना रहा है, जिम जाके बॉडी बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि एक पर्टिकुलर हीरो जिसको वो वर्शिप करते हैं उसका बॉडी ऐसे है, तो वो आयरन पंप करके अपना बॉडी बनाते हैं। स्पोर्ट्स में हो गया, सिनेमा में हो गया, दे विल ट्राई टू एम्यूलेट दोस हीरोज दैट दे आर वर्शिपिंग। ठीक है। देयर इज अ एग्जाम्पल ऑल्सो, एक केस है जो रीता नाम है उस स्टूडेंट का, क्लास 8 की है। उसके टीचर्स ने देखा कि ये जो है लड़कों के रोज भी ज़्यादा देखती रहती है। सो टीचर जो क्वेश्चन पूछे जो क्लास में पढ़ा रहे थे उसका रिप्लाई ये आता है कि प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, क्योंकि वो मन दे के सुन नहीं रही थी। सो आफ्टर रिपीटिंग द क्वेश्चन शी विल से दैट आई डोंट नो। सो टीचर्स ने ये फीडबैक दिया कि रीता तो अटेंशन नहीं देती है पढ़ाई में, ये पहले तो अच्छी स्टूडेंट थी, आजकल कुछ हो गया उसको, प्रीवियस स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका स्टैंडर्ड कम हो गया है। कंप्लेन किए फिर टीचर्स जाके उसके पेरेंट्स को। तो ये एक कॉमन सिनेरियो है ना, आप लोग भी देखे होंगे, बच्चे अच्छे पढ़ते होंगे, सडनली उनका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है और पढ़ाई में अच्छे नहीं बनते हैं। जैसे किसी टीचर, अभी किसी सर ने कहा कि पहले तो अच्छे करते थे, फिर उनका कम हो जाता है, पढ़ाई तो अच्छे करते हैं, कम हो जाता है उनका अटेंशन डाइवर्ट होके बाकी बच्चों की तरफ, बॉयज़ की तरफ या गर्ल्स की तरफ, या सिनेमा की तरफ, हीरोज के बारे में बात करना, इन सब में ज़्यादा हो जाता है। सो इसमें ये सोचने की बात है कि रीता को क्या हुआ कि वो डिस्ट्रैक्टेड हो गई स्टडी में। तो पेरेंट्स को कंप्लेन करने से क्या वो सही ठीक हो जाएगी?
आप अगर टीचर रीता के टीचर होंगे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? अगर ऐसा वाला सिचुएशन आपको तो रोज मिलता होगा, क्या करेंगे आप? होगा कुछ? काउंसलिंग एंड गाइडेंस। गाइडेंस एंड काउंसलिंग। कैसे काउंसिल करेंगे? काउंसलिंग करवाएंगे उसका। अच्छा, काउंसलिंग में उनको क्या बोलेंगे? क्योंकि हमने तो सीखा कि उनको डिस्करेज नहीं करना है, एनकरेज करना है, पॉजिटिव टॉक करना है। उनको पहले उनका अच्छाई का पीरियड याद दिलाना है। तो ऐसे ऐसे थी, हाँ, अच्छाई का याद दिलाना है। और अगर कोई बदमाशी आपने देखा कि कर रही है तो उसको अलग से बुला के उसको पॉइंट आउट करना चाहिए, देखो इस वजह से मुझे लग रहा है तुम्हारा थोड़ा ध्यान कम हो रहा है, ताकि वो रेबेलियस ना हो नेचर में। उसको सबके सामने अगर सुना देंगे तो वो रेबेलियस हो जाए कि हाँ मुझे तो सबके सामने बेइज्जत कर दे, अब क्या रह गया मेरा खुद का सेल्फ एस्टीम गया। तो इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनको पॉजिटिव टॉक सेल्फ टॉक करके उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए हाउ टू फोकस रीफोकस अगेन देयर अटेंशन ऑन द स्टडीज। ये सब अल्टीमेटली ये एज ही ऐसा है। अगर वो देखती है बच्चों बाकी बच्चों के तरफ से भी सबको ऐसे, दिस इज अ टाइम एक्चुअली जो हम एज स्पेसिफिक बिहेवियर बोलते हैं ना, जेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर भी एक होता है। सो इसमें रीता का बॉयज की तरफ देखना जेंडर एक्सप्रेशन उसका है, लीड्स टू जेंडर एक्सप्रेशन। सो वो कोई गलत बात नहीं है, बस उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि आप ऐसे ऐसे सारे बच्चे ऐसे इसी एज में होते हैं, पर आपको इससे उतर के आना है। सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऐसे होना चाहिए जिसमें वो खराब ना सोचे, वो आपकी बात को पॉजिटिवली ले। यस मैम, यस। ठीक है। और एक एरिया ऑफ कंसर्न आपको, तो आप जो बड़े बच्चों को हैंडल करते हैं उनको पता होगा कि डेटिंग, ये सब आजकल का डेटिंग जो है बॉयज और गर्ल्स का, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर जो है ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है ना। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू हैंडल सच इश्यूज। उसको कैसे हैंडल करेंगे हम देखेंगे। पहले तो सेक्सुअलिटी एजुकेशन उनको देंगे। सेक्सुअलिटी एजुकेशन में रेस्पॉन्सिबल टेकिंग बिहेवियर उनको देखेंगे। लेकिन ये जो educating them about sexuality, their own sexuality and how to come to terms with their own sexuality, ये सब जब हम पढ़ाएंगे पेरेंट्स में अपोज दैट आइडिया, क्योंकि वो बोलेंगे हम तो बच्चे थे, हमको तो किसी ने ये सब नहीं सिखाया, हमारे बच्चों को बोल के आप उनको ज़्यादा खराब कर रहे हैं। उनके मन में दिमाग में ऐसा नहीं आया होगा, आप लोगों ने ही बता के उनको दिमाग खराब करते हो, ये भी हो सकता है कि ये बोले। लेकिन टाइम सिचुएशन स्पेसिफिक एक होता है, जिस एज को वो लोग बिलोंग करते हैं, ये तो मिलेनियल किड्स है, ये जो आपके बच्चे जो स्टूडेंट्स है ये मिलेनियल किड्स होते हैं, जैसे बेबी बूमर्स ये सब हो गया। ये मिलेनियल किड्स को समझने के लिए आपको उन्हीं के लैंग्वेज में बात करना है, जिससे वो इमोशंस अपना रेगुलेट कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहांस हो सके उनका, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वो अपना सेल्फ एस्टीम को काबू में रख सके। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? क्योंकि ये सब क्यों सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग, इनको मन में अगर क्वेश्चन आए तो वो लोग कहाँ जाए, बिकॉज दे हैव टू टॉक अबाउट सच इश्यूज विच नोबडी टॉक्स अबाउट टू देम। पेरेंट्स तो बोलेंगे नहीं, घर पे तो रहते नहीं है, स्कूल में रहते हैं। सो दे हैव टू गेट द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्सेज ऑल्सो। राइट सोर्स हो गए टीचर्स, यहाँ पे वो टीचर्स का। Yes. Ma'am, any books available
in this particular topic. So you recommended some of the books in chat box. So we can write and read it, because this teenager issue is very important for especially Navodaya, because the student come to us from class 6 to 12. So they are the teenager and post-teenager. So we have to learn the behavior of the students and the socio-economic conditions and all these things. So please recommend some of the books. Books I won't recommend, because if you talk about bookish knowledge, we are dealing with real human beings, real adolescents, जिनका सोचने का तरीका भी अलग होता है, यूनिक उनका पर्सनालिटी होता है, और आपको सही क्या गलत है क्या है एज अ टीचर आपको मालूम है और आप एक्सप्लेन करा सकते हो। इसमें भी अगर आप उनको बुक दिखाओगे तो वो इंटरनेट पे लग जाएंगे, बाकी और को क्या क्या for books no, actually for knowledge of myself, or we all people are know some of the books available in the market. So can we read it to understand more and more their behaviors and symptoms. So one books on sex education जैसे एक है All About Birds and Bees है, ये तो बहुत पुराने वाले बुक्स थे, ये बस वो उनका यूज नहीं आया। एज के हिसाब से वो क्या पूछते हैं, क्या बताना चाहिए उनको, वो सब होता है। All About Birds and Bees, what you cannot ask your parents, that you can find out from the books. ऐसे 6th and 7th class 6 and 7th the stages 6 and 7 is it's called pre-adolescence. 6, 7 they're not completely matured. So इसी एज के बच्चों को जितना समझ में आए इतना ही फिल्टर करके उनको बताना है कि देखो ये आपके, you tell me the example so that I can give you the answer. Books, I would say you don't go through this बाजार का books, क्योंकि वो तो ऑल अबाउट बर्ड्स एंड बीज जो है वो तो स्टेजेस ये एक्सप्लेन सब करता है। यू कैन गो फॉर दैट बुक आल्सो। राइटर का नहीं मालूम, लेकिन आप पूछोगे तो दे देंगे। तो कैसे बच्चों को पढ़ाना है, बेंजामिन स्पोक का एक है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें भी है बेंजामिन स्पोक। बेंजामिन वो भी एक अच्छा सा बुक है। लेकिन बुक अगर आप ढूंढ के उनको करोगे तो उनका आपसे मतलब ट्रस्ट उड़ जाएगा। वो बोलेंगे अच्छा हम पूछे तो सर बुक देख के बोलते हैं क्या, वो तो टीचर जो बोलता है वो तो एकदम, जो उड़िया में एक है बेदरो गैरो, जो टीचर बोलते हैं ना वो पेरेंट्स का भी बात नहीं सुनेंगे। नहीं वो मैं उसकी मैं ये कह रहा हूँ कि इस जो टॉपिक आप पढ़ा रही हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक बुक्स है फॉर नॉलेज, बेटर नॉलेज ऑफ माई सेल्फ ओनली। फॉर योरसेल्फ बेंजामिन स्पोक का ले लीजिए आप। हाँ, बेंजामिन स्पोक चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका। हाँ, यस child development, because we people are not some of the people are not doing B.Ed na, so in psychology, child psychology is the compulsory elements of the B.Ed curriculum. Okay, yes. So child psychology is very important. So in any curriculum, in bachelor curriculum, it must be when we are going to career in teaching field or the allied field. So psychology is very important. I think so. Yes. जहाँ पे ह्यूमन बींग्स आते हैं साइकोलॉजी जानना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। ह्यूमन बिहेवियर। हाँ, यस। इसमें आपके बुक में दिया हुआ है कुछ कम जितना नहीं, जो आपने एक टॉप अभी आपने बताया ना कि 8 टाइप्स ऑफ बहुत सारी चीजें आपने डिस्कस किया, तो वो बुक्स में नहीं दिख रहा था, जो इग्नो से सप्लाई हुई है उसमें नहीं था वो सब सारी चीजें। तो but sir interrupt कर रहे हैं, some of us not got the IGNOU study material. I have to till not कोई कोर्स मटेरियल कुछ नहीं है, हम तो जो ट्रेनिंग चल रही है बस वही सुन रहे हैं बस। नहीं मिलेगा वो जरूर मिलेगा आपको बुक। पर वो क्या रहता है मैडम कि बुक मिल जाने से सर सही कह रहे हैं कि अगर हम कुछ पढ़ के बैठेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। ये वो जो समझ में आएगा, ये कोर्स में जो पढ़ा रही हूँ ना, ये है आपका PES 061 जी हाँ।
लेकिन अभी तक कोई को समा मतलब बहुत से लोगों को अभी कोर्स मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं किया है, और ये जो डिजिटल है तो अच्छा। वो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इग्नू में मेल वगैरह करने से भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं है वहां से। नहीं, ये बुक आपको मिल जाएगा क्योंकि ये आपका मटेरियल में है, तो मिल जाएगा पक्का। सर आपके यहाँ कोई और लोग मैम आप नहीं थोड़ा किया सा क्या? रिक्वेस्ट करें। कोर्स मटेरियल पहले मिल जाने से क्या होता है कि थोड़ा रिटर्न जानकारी हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो तो सेम है सर। जैसे आज हम भले ही किसी भी पोस्ट पे हैं, पर आपके लिए तो स्टूडेंट ही है मैम जी। सॉरी, यस हेलो, यस। हाँ मैडम, ये चाह रहा है ये वीडियो जो रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, मतलब ये गूगल मीट का जो ट्रेनिंग है यूट्यूब पे अपलोड यदि जल्दी हो जाएगा तो हम लोग जब चाहें तब सुन सकते हैं, पहले एग्जाम के ना। अच्छा। क्या शायद पिछले सेशन का रिकॉर्ड है, मैंने देखा है शायद, लेकिन ये वाला अगर रिकॉर्ड होकर जल्दी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर तो उससे काफी मदद मिलेगी सबको, यदि बुक नहीं भी मिलती है तो। इट इज बेटर आइडिया सर। थैंक यू सर नीरज सर, आपका सजेशन बहुत ही अच्छा है। ऐसा होना चाहिए मैम। ये लेक्चर और जल्द से जल्द अगर अपलोड हो जाए यूट्यूब पर तो हम जब चाहे तब सुन सकते हैं इसको। ये बात तो मुझे पता नहीं पक्का, वो मतलब वी विल कीप। नहीं, क्योंकि मैडम पिछले सेशन का मिला है यूट्यूब एसीपीडीटी का, भुवनेश्वर सेंटर का है पिछला जो बैच गया है जी। तो इस बार का भी यदि जल्द ही कर देंगे अभी अपलोड, तो अब पता नहीं ये भुवनेश्वर सेंटर करता है कि आरओ भोपाल करेगा, तो यदि जल्दी हो जाएगा अपलोड तो हमें अब मदद मिल जाएगी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है ना? सही जी मैडम। और उससे पहले तो मैम हाँ वीडियो सॉरी वीडियो विद द कैप्शंस, वीडियो कैप्शंस मैम वीडियो विद द कैप्शंस अगर अवेलेबल हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। कैप्शंस का पता नहीं, कैप्शंस जनरेट होता है क्या यहाँ पे? मैम ये तो पता नहीं, लेकिन जैसे वो इजी हो जाएगा थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ना। मैं तो बोलूंगी कि BA61 जो है आपका, इसमें आप अगर देखो तो मतलब आपको तुरंत याद आ जाएगा, कान में बजना शुरू हो जाएगा क्लास में जो सुने हैं। क्योंकि मैं जी मैम बिल्कुल मैं उसी बुक को ही प्रेफर करके पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाने के बाद आप देखेंगे बुक वही भी फाइन मैम। एक्स्ट्रा बात भी नहीं बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा नो मैम यू आर टीचिंग वेरी इफेक्टिव, आपकी टीचिंग बहुत इफेक्टिव। अगर आपको डाउट है तो पक्का पूछिए। आज का अगर पढ़ाने के बाद अगर आपको डाउट आया कुछ ये क्या है करके, कल की क्लास में पूछ सकते हैं, बीच बीच में भी पूछ सकते हैं, ताकि आप क्लिक करें तो आपको पता चलेगा अरे ये तो हमने सुना है, ये तो सुना है। बस आप पलटते जाइए, देखिए आप। जी मैम, थैंक यू जी मैम। ओके, शुड वी कंटिन्यू? यस मैम। ओके यस मैम। ओके, सो ये जैसे ये बड़ा संजीदा टॉपिक है, मुझे पता चला, क्योंकि अभी तक तो कोई नहीं बोल रहा था। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, हमारे अगर एक दो बच्चे होके भी हमको ये एडोलेसेंट इश्यूज हैंडल करने में दिक्कत होती है, तो ये आप लोग तो इतने सारे बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, पक्का दिक्कत होती होगी। एंड जो कि हम एज स्पेसिफिक बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे, तो एज स्पेसिफिक बिहेवियर एडोलेसेंट का एक है टेकिंग इंटरेस्ट इन द अदर सेक्स ऑफ अदर चिल्ड्रन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अदर सेक्स, ये भी एक एज स्पेसिफिक बिहेवियर है। ये अगर बड़े बच्चों के जैसे बिहेव करेंगे तो ये एडोलेसेंट कहा नहीं जाएगा उनको, क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है, इसलिए गलत नहीं है, बस ये गलत तरीके से देखा जाता है। उनको भी मन करता है बात करें, क्योंकि उनका हार्मोन चेंजेस विल मेक देम take interest in other people also, those who are not from the same sex, and it is perfectly okay. It is the duty of a teacher to divert their attention to the proper channels, so that they will so that उनको ये अपना एनर्जी जो है उसी डायरेक्शन में डाइवर्ट कराना है, and they will look at the other sex also in a very healthy manner. हेल्दी रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। अगर उनको आप नहीं बोलेंगे तो वो दूसरे चीप बुक्स जो मिलता है, नहीं तो इंटरनेट पे ढूंढ के, कभी कभी कुछ टाइम मिल गया तो इंटरनेट पे ढूंढेंगे, तो उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो आपको इंफॉर्मेशन खुद आप दे तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो सही रास्ते पे रहे, है ना। So responsible adults
जो है वो अगर ये इशू को अवॉइड करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो ये बच्चे भी इग्नोर करना सीख जाएंगे। लेकिन उनका बॉडी चेंजेस होता है, पीयर ग्रुप के साथ डिस्कशन होता है, वो पेपर में देखते हैं ये हो गया, वो हो गया, सो उनका क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ेगा। जो जिसके बारे में ज्यादा जानने को नहीं मिलेगा उसके बारे में उनको ज्यादा क्यूरियोसिटी होगा, तो वो क्या करेंगे, सब गलत सलत सोर्स से इंफॉर्मेशन टैप करने की जरूरत है, समझेंगे। इसीलिए टीचर्स को अगर ये नजर में आता है तो ये एक उनका पार्ट ऑफ स्टडी है, तो उनको पढ़ाने की सिखाने की जरूरत होती है। क्योंकि पेरेंट्स तो बोलेंगे नहीं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन मीडिया पे, बहुत सोशल मीडिया पे मिलता है, ये इंटरनेट पे मिलता है, ये सब मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, कभी कभी सेफ नहीं होता है। इसीलिए वो आप जैसे बेंजामिन स्पोक का बुक बताया, नहीं तो और एक है ऑल अबाउट बर्ड्स एंड पीस भी, ये भी आप देख सकते हैं। ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन बेंजामिन स्पोक का आप देख सकते हैं। और एक है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी करके एक बुक है, उसमें भी आप देख सकते हैं ये जो 8 स्टेजेस ऑफ एरिक्सन जो है, विगोत्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ये सब आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में मिल जाएगा। ठीक है, यस मैम। ओके। और स्कूल में रिस्की प्लेसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे जहाँ पे बदमाशी करने के लिए बच्चे जाते हैं। आपके स्कूल में भी बदमाशी करने के लिए बच्चे जाने का पॉइंट होगा, कहीं पे छुप के, पानी टांकी के पीछे, पानी टांकी के ऊपर, कहीं पे बदमाशी करते हैं, जाके बीड़ी सिगरेट लगा देते हैं, नहीं तो बात करने के लिए। ये सब आइडेंटिफाई करके यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दोज एक्टिविटीज ऑल्सो। ये रिजिड ज्यादा नहीं होके आप फ्रेंडली वे में उनको अपने पर्सपेक्टिव से समझा सकते हैं आप। हर ये जरूरी नहीं है कि हर बात को आप अच्छा और बुरा बोले, rather they should be encouraged to pay importance to safety और health, वेलबींग, अपना सोशल नॉर्म्स क्या है, मॉरल ग्राउंड क्या है, एथिकल है कि नहीं, लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है अगर ये करे तो, ये सब उनको अच्छे से समझाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, Thank you, डॉक्टर ma'am. निवेदिता मैडम। कल एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तो हम करेंगे। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैडम। थैंक यू। नो क्वेश्चंस? नो मैम। हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। मैं नीरज बोल रहा हूँ जेएनवी जबलपुर से। मैडम थोड़ा मेरा क्वेश्चन है, आई एम अ विजुअली चैलेंज पर्सन। ओके। तो यदि ये क्वेश्चन मेरा है जनरल थोड़ा है कि विजुअली चैलेंज पर्सन क्लास हैंडल करनी होती है, हालांकि मैं अपने कुछ उपाय करता हूँ उसके लिए। कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसे होती है जो सामान्य व्यक्ति को झेलनी पड़ती है, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। अच्छा। है ना, तो एक विजुअली चैलेंज टीचर के लिए क्या सजेशन है आपको? टीनेजर जो बच्चे हैं और खासकर से टीनेजर के साथ ही बहुत ज्यादा समस्या होती है हैंडल करने में। ठीक। तो हमें स्कोर नहीं लेना पड़े, मुझे कोई अटेंडेंट ना रखना पड़े। अच्छा। तो मैं अपने हिसाब से कुछ तो उपाय मैं अपनाता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से क्या सजेशन? आप विजुअली चैलेंज्ड बचपन से है? विजुअली चैलेंज्ड म्यूजिक टीचर हूँ जेएनवी जबलपुर में। हाँ, बचपन से आपका ये है? नहीं, बचपन से नहीं मैडम, मेरा 1989 में हुआ, आफ्टर 7th क्लास। हाँ। ओके। लेकिन आपने जो लाइफ अपना इतना अच्छे से हैंडल किया है, मुझे लगता है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम सब मतलब अच्छे से वो डेवलप किया हुआ है। जो टेक्निक, हाँ, मैं जी अपने कई तरीके में अपनाता हूँ, लेकिन मैं आपकी तरफ से, आप लोग फील्ड के मास्टर हैं, मतलब आप एक्सपीरियंस है, तो और क्या सजेशन हो सकता है कैसे? कई सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है जो ना देखने की वजह से काफी चैलेंजेस कई बार खड़े होते हैं ना। क्लास को सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये सबके लिए अलग ही जाती है, शांति व्यवस्था बनाना क्लास में सबसे पहले। 5 से 10 मिनट तो क्लास को
काम रखने में लग जाते हैं। फिर और भी क्या है, कई सारे चैलेंजेस हैं, तो कुछ अपने तरीके हैं उससे उनको मैं अप्लाई करता हूँ। लेकिन आपका क्या सजेशन है कि मैं एक बात हम जैसे बताऊं, व्यक्तियों आपको के लिए? लगता है कि आपको ही चैलेंजिंग लगता है, लेकिन बाकी सब टीचर से पूछेंगे तो उनको भी लगेगा कि उनको भी इतना चैलेंजिंग हाँ, लगता है। जी जी जी, चैलेंज सबके लिए, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा है। ठीक इसलिए जी। है। आप अगर अपने बारे में ये जो विजुअली चैलेंज्ड का सोचेंगे कम क्लास में होते हुए, यू कंसिडर हाँ। योरसेल्फ ओनली एज अ टीचर, नॉट एज अ विजुअली इम्पेयर्ड टीचर। नहीं, मैं नहीं सोचता हूँ, वो नहीं सोचता, मैं सजेशन मांग रहा हूँ। मैं कभी ऐसा मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो 22 ईयर्स हो गए मुझे जॉब करते हुए नवोदय में, है ना। तो मैं यूट्यूब पे भी सर्च करूँ, मैं टेक्नोलॉजी भी यूज करता हूँ, यूट्यूब पे भी नए नए उपाय, गूगल पे भी, और कई तरह के अलग टेक्नोलॉजी से सीन रीडर सॉफ्टवेयर की मदद लेता हूँ, और कई डिवाइसेस हैं, तो उसकी मदद से मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम जाती है कि जिनका जवाब मिलता नहीं नेट पर भी, ना, फिर अपने ही कुछ उपाय अप्लाई करने होते हैं। मुझे तो तो लगता है आपका एज ए टीनेजर काउंसलर या ट्रेनर क्या सजेशन है, किस तरह ये से उनको विजुअली चैलेंज तो बहुत ही कम टीचर्स होंगे जो इतने एफिशिएंटली 2 साल से क्लास ले रहे हैं, है ना। 2 साल हो गए, मतलब आपका तरीका सही है, आप जो भी कर रहे हैं। 22 ईयर्स में हूँ, 22 ईयर्स से हूँ मैं नवोदय में। अच्छा, 22 ईयर्स। या आई एम जॉइन इन जवाहर नवोदय विद्यालय 2002। ओके, तब तो आपको टिप्स देना चाहिए बाकी टीचर्स को। नहीं, टिप्स तो देता हूँ अपने नए जो फ्रेशर्स हैं, उनको मैं देता हूँ, ऐसी बात नहीं। हमने ग्रुप बनाया ऑल इंडिया का एक, और लगभग अक्रॉस द इंडिया 70 विजुअली चैलेंज पीपल आर वर्किंग जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक। लेकिन आप जो कर रहे हैं बस कंटिन्यू डूइंग दैट, बिकॉज इट इज वर्किंग, इट सीम्स। नहीं तो 22 इयर्स फॉर अ टीचर, नॉर्मल टीचर्स को भी आप बोलोगे तो 22 इयर्स बहुत भारी पड़ेगा उनको, फिर बोलेंगे। यू आर सेइंग इट्स अ स्मूथ वर्क, इट सीम्स। क्योंकि है ना कि लाइफ लॉन्ग हम सीखते हैं, कहीं सबसे सीखना है ना, जैसे सीखना है, और कई काउंसलर मेरे ट्रेनर हैं, उनसे भी सीखना है। तो ये सजेशन है, मैं तो ऐसे हैंडल करता ही हूँ। लेकिन आप ऑल विजुअली चैलेंज जो पर्सन है नवोदय में, उसके लिए क्या सजेशन है आपका? उनको तो मतलब आजकल बोलते हैं कि उनको मतलब हाईलाइट मत करो, you don't focus on the visual impairment as a handicap, because you are वो नहीं मैं हाईलाइट करता हूँ। you or any other teacher or any other student who is visually impaired, उनको तो उनका टर्म भी यूज करते हैं, दिव्य दृष्टि जो बोलते हैं ना, ऐसा कुछ उनको बोलते हैं। दिव्यांग, अभी दिव्यांग नाम दे दिया है, अलग अलग नाम समय होते रहे। ये एक्चुअली दिव्यांग है क्योंकि बाकी सब जो आपके एनहांस हो जाते हैं, बाकी सब सेंसरी सिस्टम्स आपके एनहांस्ड हो जाते हैं, तो हमको जो दिखता है आपको वो मतलब बिना देखे भी दिखते होगा। तो करते हैं from the sound or from the tone you can sense the person's तो मैडम, सॉरी मैडम, इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैडम, नीरज जी हमारे विद्यालय में हैं अभी इस समय, जबलपुर। और नीरज जी बहुत बढ़िया टीचर हैं, उनने 2-3 नेशनल अवार्ड भी ले चुके हैं म्यूजिक, एज अ म्यूजिक टीचर। और टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। हमारे यहाँ जो हम लोग भी नहीं कर पाते हैं वो कर रहे हैं। और वो मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा एज होता है उनका, दे विल बी मोर इंटेलिजेंट इन अदर एरियाज। एक्चुअली वो तो गवर्नमेंट को देखना है, वो तो जो पॉलिसीज है उसी के हिसाब से ही हो पाता है। लेकिन सर जी बहुत टैलेंटेड आदमी है, हम लोग सीखते हैं उनसे। ये तो है। नीरज जी, आप तो मुझे लगा कि आप तो सिखाने के रूप में चले गए, इतना साल आपने टीचिंग प्रोफेशन में नाम कमाना। इसलिए मैंने कहा कि मैं क्योंकि लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, सीखता हूँ हमेशा। जब हमारे यहाँ नेट का यूज करना लोग सीख रहे थे, उस समय पूरी टेक्नोलॉजी यूज करा रहे थे ऑनलाइन। जैसे बच्चों को पढ़ाना है तो ये जितने भी सपोज इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक टीचर है एक्चुअली सर, तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये नेट से ही बच्चों को दिखा दे रहे हैं, सारा कुछ कर दे रहे हैं।
जबकि वो हमारे लिए भी संभव नहीं हो पा रहा है जो सर करके दे रहे हैं बच्चों को। अच्छा, ये तो हम लोग भी मतलब बहुत आश्चर्य में रहते हैं कि सर ये करते कैसे हैं। नीरज जी देखा, ये तो आपने जो हाँ मैडम, वो तो सर का बड़प्पन है। सर हमारे बहुत अच्छे सहयोगी है मैडम, हमारे अच्छे कलीग हैं और बहुत हेल्प करते हैं, तो ये तो उनका बड़प्पन है। लेकिन मैं मैडम स्टूडेंट हूँ, सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया आपसे कि है ना, और नया क्या सीख सकते हैं ना, हमेशा ही सीखना है लाइफ नॉलेज, अपना नॉलेज को बढ़ाना चाहिए बच्चों को। जी जी जी। हाँ, बच्चे एक ही चीज को रेस्पेक्ट करते हैं, जितना भी बदमाश हो, इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ नॉलेज टू गिव देम, then they will respect you. And it seems you have the right kind of knowledge, that is why people are admiring you. तो ये I do this every time, but I want to suggest some suggestions, and whenever I stick this type of problems handling children's teenagers children in Jawahar Navodaya Vidyalaya, है ना, this type of problems are all of general sighted person are facing, but we are more challenging. Yes, it's challenging, but it is a challenging situation in the right manner also. क्योंकि आपको इतना उम्र हो गया, 22 साल का तजुर्बा हो गया, तो that itself is a proof that you are a good teacher. 22 years से आप I try to being a तो है, teacher. महेंद्र सिंह सर ने बताया, फीडबैक भी अच्छा है आपका। टीचर बात की बोल रहे हैं, जो हम फीडबैक के बारे में बोल रहे हैं, दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक। सो ऑल पॉजिटिव qualities that are emphasized when your name comes as a teacher. So I think that itself is a good thing to learn from you. We all are here in a teaching learning experience. जी नहीं कि आप मतलब एक्स्ट्रा एनहांस करने की बात जो कर रही हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो यू कैन रीड बोथ from the same kind of experienced teacher. You can ask them, share your ideas with them, so that they can tell you actually what challenges they are also facing, so that you can combinedly reach conclusions. ये उनके एरिया में काम करते हैं, तो मेरे एरिया में लगा करें। Thank you. Very good. I'm so happy. ठीक है, कल उसी टाइम पे फिर 10 से 12 मिलते हैं। ओके मैम। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके मैडम, थैंक यू। बाय बाय। Okay madam, thank you very much. Thank you, ma'am. बाय, थैंक यू। Thank you, madam. थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। Ma'am, thank you.